मैं चाहूंगा हम लोग सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे और उस कोरस को गाएंगे, हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. You all believe. My Jesus is here. My precious Pastor Ashish says here, and all things are possible. My Jesus is here. Amen. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. We thank you, our Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this precious evening you've given to us, इस प्यारी संध्या के लिए जो आपने हमें दी है। that we've gathered from the various parts of this country, Father, इस देश के विभिन्न क्षेत्रों से हम यहाँ पर इकट्ठा हुआ हैं on this blessed occasion इस मुबारक मौके के लिए, खुदावंद ओकेजन के लिए, when you gave Brother Abner and Sister Rimjim a boy, जबकि आपने भाई एबनर और बहन रिमझिम को एक बेटे से आशीषित किया। by revelation they named him Ezekiel Jireh, और प्रेरणा के साथ खुदावंद उन्होंने उसका नाम एज़ेकिएल जायरे रखा। खुदावंद we also heard the testimony today, हमने वो गवाही को भी आज सुना खुदावंद, and we just glorify your name, और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, for to you belongs all glory and honor. क्योंकि आपका ही सारे आदर और सारी महिमा है। And Lord, we are nothing और प्रभु हम कुछ नहीं हैं, but just sinners saved by your grace. लेकिन हम वो गुनहगार हैं जो कि आपके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। So under your blood we come सो आपके लहू के नीचे हम आते हैं and desire a time of fellowship with you again tonight. और आज रात्रि एक बार फिर से आपके साथ प्रभु संगति का अवसर चाहते हैं। And Lord, please explain to us what you have for us tonight. और आज रात्रि प्रभु कृपया करके हमें समझाएं कि आपके पास हमारे लिए क्या है। खुदावंद We bring ourselves, our families, our churches under your blood. अपने आप को, अपने परिवारों को, खुदावंद अपनी कलीसिया को आपके लहू के नीचे लाते हैं। And Lord, I pray let every even demonic spirit be cast away from this place in hell for the day of destruction. और प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा, पिशाचिक शक्ति खुदावंद यहाँ से बर्बादी के दिन के लिए नरक में बांध दी जाए। And let your sweet Holy Spirit come and talk with the hearts of thy children. और खुदावंद आपका मधुर पवित्र आत्मा आकर के आपके बच्चों के हृदयों से बातचीत करे। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you all. खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। On this wonderful day we have, ये बहुत ही प्यारा अद्भुत दिन जो हमारे पास है, we heard a wonderful testimony और हमने बहुत ही अद्भुत गवाही को सुना। how God spared the life of this child. कैसे खुदावंद ने इस बेटे के जीवन को बख्शा। And now we're going to turn to Hebrews chapter 11. और हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, This great faith chapter. ये महान विश्वास का अध्याय।
And we are going to read verse 17 and to till verse 19. और हम 17वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़ेंगे. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, for whence also he received him in a figure. विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि खुदा सामर्थी है और उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला. Heavenly Abba Father, हे स्वर्ग पिता अब्बा, we thank you for thy word. आपके वचन के लिए धन्यवाद हैं. Now quicken the minds of thy bride अपनी दुल्हन के मन को आप जगाएं to the events of this present hour, इस वर्तमान की घड़ी की घटनाओं को लेकर के, as we submit ourselves into your hands of grace. जबकि अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं. We thank you for the songs we just heard इन गीतों के लिए जो हमने अभी सुने, आपके बड़े धन्यवादित हैं, and the worship that was done. और जो उपासना की गई. Now let us worship you in the preaching and hearing of the word. अब ऐसा हो सके आपके वचन के प्रचारे जाने और सुने जाने से हम आपकी उपासना करने पाए. In the name of Jesus Christ and under your blood, Lord Jesus, we come and ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम और आपके लहू के नीचे हम आकर के इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. आमीन. You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. God bless everybody. खुदावंद हर एक को बड़ी बरकत दे. It's a wonderful day the Lord has given to you and I. एक बहुत ही प्यारा अवसर है और समय जो खुदा ने आपको और मुझे दिया है. God bless our brother Rajiv Das खुदावंद हमारे प्यारे भाई राजीव दास को बड़ी बरकत दे, and Pastor Indal और पास्टर इंदल को भी, for, and then Abner और फिर एबनर को, for extending this invitation to us. उन्होंने इस निमंत्रण को हमारी ओर भेजा. God bless brother Abner and sister Rimjim and this child. खुदावंद भाई एबनर को, बहन रिमजिम को और इस बेटे को बड़ी आशीष बरकत दे. Truly, who has been received as one from the dead. बेशक और सच्ची तौर पे एक ऐसा बेटा मिला जो कि मृतकों में से मिला है. And so we really thank God and would like to glorify this work of God tonight. और आज रात्रि वास्तविकता में इस खुदावन की नाम को हम ऊंचा उठाना चाहेंगे. I also thank God for my fellow brothers who are here as ministers. और मैं जो सेवकगण भाई जो मेरे संगी सहपाठी हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं. I see Pastor Ashok, मैं पास्टर अशोक को देख रहा हूं, Pastor John, Pastor Satnam, पास्टर जॉन, पास्टर सतनाम, Brother Deepak, भाई दीपक, Pastor Bhupinder, पास्टर भूपिंदर, Pastor Tara Ramola, पास्टर तारा रमोला, and then I have Pastor Goodwin. Where is he? और पास्टर गुडविन. Yeah, he's sitting there. God Yeah. bless brother Pastor Goodwin and then Pastor Pinkle from Patiali. और Yeah? पास्टर पिंकल पटियाली से, Amen. And other brothers who have come from other places. और बाकी विभिन्न भाई लोग जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं. I've seen brothers from Punjab. God bless everybody. मैं पंजाब से भाइयों को देख रहा हूं. खुदा सबको बड़ी बरकत दे. God bless you sisters बहनों, खुदा आपको बड़ी बरकत दे who have come from here and from the neighboring places. जो कि यहाँ से आए हैं और पड़ोसी जगहों से आए हैं. God really bless you. खुदा आपको बहुत आयत से बरकत दे. Together we become the bouquet bride of Christ. और एक साथ मिलकर के हम वो बुके दुल्हन बनते हैं मसीह यीशु की. We are the children of the prophets. हम नबियों के संतान हैं. And we are now living in the last days, और अब अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं. in the days of the fulfillment of some prophecies. और कुछ नबूवतों के पूर्तिकरण के समय में. And we can see that the Holy Spirit is now moving in His bride. और हम देख पा रहे हैं कैसे पवित्र आत्मा अपनी दुल्हन में आगे बढ़ रहे हैं. Sending His quickening power. और अपनी जिला उठाने वाली सामर्थ को उन्होंने भेजा है. The dynamics in the last days. वो गतिशीलता, वो चालक शक्ति अंतिम दिनों में. Because we can see the mechanics is almost ready. क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो मशीन तो अब तैयार है. But the power of resurrection, लेकिन वो पुनरुत्थान की जो सामर्थ है, which quickened the word and opened the seals. जो कि वचन को जगाता है और मोहरों को खोलता है. And now that word has stepped out of the word. और वचन से बाहर पदार्पण कर चुका है. Word is pointing to the word. वचन की ओर संकेत कर रहा है. And this word has become alive. और ये वचन जीवित
चुका है। In Anointed Ones, Brother Branham said, अंत समय के अभिषेक वाले संदेश में भाई ब्रैनम ने कहा, this is a trembling time. ये थरथराने का समय है। This word is coming to life. ये वचन अब जीवित हो रहा है। And when we see the word coming to life, और जब हम वचन को जीव उठते हुए देखते हैं, your promises are coming to life. आपके जो वायदे हैं वो जी उठ रहे हैं। The promise of our body change, हमारी देह बदलाव का वायदा, the promise of the resurrection पुनरुत्थान का वायदा, is being made alive ये जीवित किया गया है by the quickening power. जिला उठाने वाली सामर्थ के द्वारा। And now that same quickening power, और अब वही जिला उठाने वाली सामर्थ which you just heard a testimony, जिसके बारे में आपने अभी गवाही को सुना, how this child was almost dead. कैसे ये बच्चा लगभग मर चुका था, But when I see this child, I see resurrection. लेकिन जब मैं इस बेटे को देखता हूं, मैं पुनरुत्थान को देखता हूं। So we have a resurrection amongst us, हमारे बीच में एक पुनरुत्थान है which is a proof that he is able to raise the dead. जो कि इस बात का भरसक सबूत है कि वो मृतकों को जिला सकते हैं। What did he say in Ezekiel? एज़ेकियेल में उन्होंने क्या कहा? Can these dead bones live? क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? Prophesy, you son of man. ऐ मनुष्य के पुत्र नबूवत कर। And when he prophesied, और जब उसने नबूवत करी and bones came to the bones, और हड्डी हड्डियों पे आ गई, and then the flesh came, और जब मांस आ गया, and the bodies came, और जब देह तैयार हो and गई, then he said, prophesy the second time. और तब उसने कहा दूसरी दफा नबूवत कर ले। Prophesy to the winds. हवाओं को नबूवत करके बोल दे। And when the winds came, और जब हवाएं it आई, stood up a mighty marching army. तो एक महान कदम मिलाती हुई सेना तैयार हो गई। We are living in the days of the fulfillment of that prophecy. हम उस भविष्यवाणी के पूर्तिकरण के समय में रह रहे We हैं। are a proof of his resurrection. हम उसके पुनरुत्थान का सबूत हैं। This horizon of the sun, ये सूर्योदय का समय है। the picture has been turned. तस्वीर मोड़ी जा चुकी है। It's not just 7 angels. केवल 7 दूत नहीं है। It's the face of the mighty angel. ये महान शक्तिशाली का दूत है, दूत का चेहरा है। 7 angels making the mighty angel. 7 दूत महान शक्तिशाली दूत को बनाते हैं। 7 voices 7 आवाजें making one voice. एक आवाज देते हुए, And when that voice was spoken in the last days, और अंतिम दिनों में जब वो आवाज बोली गई, God veiled behind a human tabernacle. जो एक इंसानी मंदिर के पीछे पर्दे के था, And God uttered the 7 voices. और खुदावन ने 7 शब्दों को बोला, And John heard it. और यूहन्ना ने इसको सुना, The bride has heard it. दुल्हन ने इसको सुन लिया And now है, the voices are in the bride. और तमाम आवाजें अब दुल्हन में हैं, And now she has the potentials. और अब उसके पास वो सामर्थ्य She है, has that quickening power. उसके पास चिल्ला उठाने वाली She सामर्थ, has that resurrection. उसके पास वो She पुनरुत्थान, has that word. उसके पास वो वचन है, The word in this hour वो वचन इस घड़ी में, to quicken the people. ताकि लोगों को जगा दे। And I want to say this. और मैं ये कहना चाहता हूँ, We are living in that time. हम उस समय में रह रहे हैं। Any of these days, इन्हीं किन्हीं दिनों में these atoms would be changed. ये परमाणु बदल जाएंगे। It's not just hearing a message. ये केवल एक संदेश को सुनना We नहीं, are the message. हम ही संदेश हैं। It's not just reading the word. ये केवल वचन का पढ़ना नहीं Now है, we are the word. अब हम वचन हैं। And when the time has come, और जब समय आ चुका the है, Spirit came to quicken the word. आत्मा ही वचन को जिलाने के Now लिए, the Spirit comes to quicken us. और वो आत्माएं हमें जलाने के लिए, Because we are the word. क्योंकि हम वचन हैं। We heard the quickening of the word in the messages. हमने वचन के जगाए जाने को संदेशों में सुना, Now we are going to experience the quickening of the word in our bodies. अब हम वचन के जिलाए जाने को अपनी देहों में महसूस The same करेंगे। rapture in faith. वही उड़ाने वाला The विश्वास, same quickening power. वही जिला उठाने वाली सामर्थ, Quickening these atoms. इन परमाणुओं को जगाते हुए Last days. अंतिम दिन, Last meetings. अंतिम सभाएं, Last times. अंतिम समय, We are living in that time, हम brother. उस समय में रह रहे मेरे भाई। When we have the 7 voices. जब हमारे पास 7 आवाजें हैं, And we have the pyramid. और हमारे पास वो पिरामिड We है, have the capstone. हमारे पास चोटी का We पत्थर है, have the Enoch's faith. हमारे पास हनोक का विश्वास We है, have the faith of the fathers. हमारे पास पितरों का We विश्वास है, have the king's sword. हमारे पास राजा की We तलवार है, have the third pole. हमारे पास तीसरा खिंचाव We है, have the 10th vision. हमारे पास तंबू का दर्शन We है, have Branham. हमारे पास भाई ब्रैनम We है, have Elohim. हमारे पास एलोहिम We है, have Jehovah. हमारे पास यहोवा We है, have Jireh. हमारे पास येरे We है, have Rapha. हमारे पास राफा है, Nissi. निस्सी, Shalom. Shalom. Ra. Ra. Sidkenu. Sidkenu. Shama. Shama. Adonai. Adonai. Makadish came. मकादिश के, The great 7 spirits. वो महान 7 आत्माएं In the last days. अंतिम दिनों में Talking to his bride. अपनी दुल्हन से बातचीत करते Quickening हुए, the bride. दुल्हन को जगाते In the हुए, last days. अंतिम दिनों में With the rapture in एक faith. उड़ाए जाने वाले What विश्वास a के body साथ, change. एक देह बदलाव के And लिए, that's the hour we are living और ये in. वो घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं। Amen. आमीन, Glory. महिमा,
Hallelujah. हालेलुया, That's the time. ये है वो That's समय, the power. ये है वो सामर्थ, That's the faith ये है वो which विश्वास the bride shows in this जो hour. दुल्हन दिखाती है इस घड़ी में। Ruth's desire रूत की इच्छा became Ruth's faith, रूत का विश्वास बन गया, became her decision, उसका फैसला बन गया, became her works, उसके काम बन गए, became her rest, उसका विश्राम बन गया became her reward. और उसका प्रतिफल बन गया। When she raised a seed of the dead. जब उसने मृतक के वंश को जिलाया। If there's somebody spiritual, अगर कोई आज आत्मिक हो will understand what I'm saying. जो इस बात को समझ पाए मैं क्या कह रहा And हूँ, she brought out a bed, और वो बेद लेके आया which is worship. जो कि उपासना When है। the book was opened, जब किताब खोली and गई, Obed brought Jesse, ओबेद से यसी and आया Jesse brought David, और यसी से दाऊद आया which is the millennium. जो कि 1000 साल बादशाह And थे। that's what's happening now. यही अब हो रहा है Between Son of God and Son of David, खुदा के पुत्र और दाऊद के पुत्र के बीच we में have Son of Man मनुष्य का पुत्र है with the 7 voices, उन 7 आवाजों के साथ quickening a bride, एक दुल्हन को with a चुराते हुए rapturing faith, उड़ा जाने वाले with विश्वास a के साथ quickening power. चिल्ला उठाने वाली In सामर्थ के the साथ last days, अंतिम दिनों में she becomes his voice, वो बन जाती है उसकी आवाज, the final voice अंतिम आवाज to the final age, अंतिम युग के लिए speaking that voice उस आवाज को बोलते हुए under that sign. और शिन के नीचे She's under that sign. वो शिन के नीचे She है, has that faith. उसके पास वो विश्वास She's है, the proof of his resurrection. उसके पुनरुत्थान का वो सबूत है, He's proving his word in her. वो अपने वचन को उसमें साबित कर रहा है। Talita Kumi, तालीता कुमी, rise, O bride. ओ दुल्हन जग जा, A revival. एक बेदारी When bones came to the bones. जब हड्डियां उसे मिल गई। That's the age we are living in. यह है वो युग जिसमें हम रह रहे हैं। That's why इसीलिए the bride of Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन is a totally different woman. बिल्कुल ही फर्क स्त्री है, She's not the other woman. वो बाकी स्त्रियों की तरह नहीं है। You can't put her with the harlots. आप उसको वैश्याओं के साथ नहीं रख सकते। She's a city. वो एक शहर है। Behold, the tabernacle of God is with man. देखो खुदा का डेरा मनुष्यों के बीच में है And God shall dwell with them. और खुदा उनके साथ डेरा And shall करेगा be with them. और उनके साथ And be रहेगा their God. और उनका खुदा होगा। In her is the river of life. उसके अंदर जीवन की In नदी her है, is the tree of life. उसके अंदर जीवन का In वृक्ष her है, are the 12 stones. उसके अंदर 12 पत्थर In है, her are the apostles. उसके अंदर प्रेरित है, In her are the 12, the capstone. उसके अंदर चोटी का पत्थर है In her is all the revelation. और उसके अंदर तमाम प्रकाशन है। Come, आओ let me show thee the bride, आओ मैं तुम्हें मेमने की दुल्हन the को दिखाऊं, lamb's wife. जो कि मेमने की पत्नी है And there's no night there. और वहां पर कोई रात नहीं There's है, no night in the bride. दुल्हन में कोई रात नहीं है, Because the lamb क्योंकि मेमना is the light वही रोशनी है of that bride. उस दुल्हन की, That pillar of वो fire, आग का सतूर, that amber color, वो एम्बर की from रोशनी the capstone चोटी के पत्थर से to the lowest part, सबसे निचले हिस्से तक covering every part. हर एक हिस्से को In ढांकते the हुए last days, अंतिम दिनों में she's an anointed, वो अभिषिक्त है an anointed Christos. और एक अभिषिक्त क्रिस्तोस In the last days, अंतिम दिनों में and the bridegroom और दूल्हा praises her. उसको शराता है। She's now the revelation अब वो जो स्त्री है, वो जो दुल्हन है, वो प्रकाशन है of Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का, which God gave unto him. जो खुदा ने यीशु मसीह को दिया That's her, that she's that revelation. कि वो है वो मुख्य And अश्व। when he says, I'm Alpha and Omega, और जब उसने कहा मैं अल्फा ओमेगा हूँ, that Alpha and Omega is manifested in her. वो अल्फा और ओमेगा दुल्हन के अंदर प्रकट होता है And when Omega becomes Alpha, और ओमेगा अल्फा बन जाता है, the circle is completed. चक्री पूरी हो जाती है, You're back into eternity. हम वापस अनंतता में पहुंच जाते Holy convocation. हैं। पवित्र महासभा, The 8th day. 8वां दिन, The Feast of Tabernacles. झोपड़ियों का पर्व, That's the day we are living ये है in. वो दिन जिसमें हम रह रहे The हैं। future home भविष्य का घर is right वो here. ठीक यहाँ पर है, His voice उसकी आवाज is right here. ठीक यहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding, क्या church? समझ रहे हैं कलीसिया? That's the church we are speaking to tonight. ये है वो कलीसिया जिससे आज रात्रि हम बातचीत कर रहे हैं। Not just to celebrate a birthday, केवल एक जन्मदिन मनाने नहीं, celebrate a mystery एक भेद को मनाने that has come amongst us, जो हमारे बीच में आया है, called Ezekiel Jireh. जिसका नाम है एजिकिएल जायरा। And this is my job tonight for next few minutes. और ये मेरा काम है अगले कुछ मिनटों में के लिए, If God gives me grace, अगर खुदा मुझे अनुग्रह दे, how Jireh got connected with Ezekiel. कैसे यिरे एजिकिएल के साथ जुड़ गया। Now that's my job, अब ये मेरा काम है and that's actually the job of the Holy Ghost. और वास्तविकता में ये कार्य तो पवित्र आत्मा का है। And may the sweet Holy Spirit
break it down for us tonight. और काश वो मधुर पवित्र आत्मा हमारे लिए तोड़ के उसको आज रात्रि दे दें। While we have come here in this meeting, जबकि हम इस सभा में यहाँ पर आज रात्रि आए हैं। please sit down. God bless you. कृपया बैठ जाइए, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Amen. आमीन। Amen. God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Now we are in Hebrews chapter 11. हम इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में हैं। This is the great faith chapter. ये महान विश्वास का अध्याय है। And you know, when Paul started the faith chapter, और आप जानते हैं जब पौलुस भाई ने इस विश्वास के अध्याय को चालू किया, he didn't start from Adam. उसने आदम से चालू नहीं किया, He started from Abel. उसने हाबिल से चालू किया। Because the beginning of faith was in that lamb, क्योंकि विश्वास का आरंभ उस मेमने में था, which died instead of us. जो हमारे संति मारा गया। And then after Abel, he directly comes to Enoch. और हाबिल के बाद सीधे सीधे वो हनोक पे आता है। And we need to understand, और हमें ये समझना जरूरी है, Enoch is the seventh from Adam. हनोक आदम से 7वां है। And right after Abel, he brings that seventh one. और ठीक हाबिल के बाद वो 7वें को लेके आते हैं। And I want to show you और मैं आपको दिखाना चाहता हूं that faith which became the pivotal cornerstone of these people's life, वो विश्वास जो कि कोने का पत्थर, जो वो आधार बन गया, आधारी पत्थर बन गया इन तमाम योद्धाओं का। I hope you're understanding it, मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। was actually the basis of our rapturing faith. वो वास्तविकता में हमारे स्वर्गारोहण वाले विश्वास का आधार है। Now I'm going to show you something from Abraham. Why I chose this? मैं इब्राहिम साहब को कुछ दिखाना चाहूंगा क्यों मैंने इसे चुना है। Because it sort of matches with the testimony we heard today. क्योंकि ये किसी रीति से उस गवाही के साथ जुड़ता है जो हमने अभी सुनी। Just follow it. God really bless you. Amen and amen. मेरे साथ चलने की कोशिश करें And I think you'll understand it. और मैं सोचता हूं आप समझेंगे इसे। By faith, विश्वासी से Abraham, इब्राहिम when he was tried, जब वो परखा गया, offered up Isaac. उसने इसाक को बलिदान करके चढ़ाया। And he that had received the promises offered up his only begotten son. और जिसने प्रतिज्ञाओं को भैया हिंदी में वो अपने इकलौतों को चढ़ाने लगा, उसने And he that had received the promises, और वो जिसने वायदे को प्राप्त किया, not promise, brother, promises. वायदों को Yes. वायदों को प्राप्त किया, Offered up his only begotten son. अपने इकलौते बेटे को चढ़ाया। Now, let me ask you a question. अब आइए मैं आपसे सवाल पूछता हूं। I think there are many fathers who are sitting here. मैं सोचता हूं कि बहुत तेरे पिता यहां बैठे हैं। If God asks you, अगर खुदा ने अगर आपसे पूछा, take your son और खुदा ने आपसे आगे कहे कि अपने बेटे को ले and offer him for a sacrifice, और कुर्बानी के बतौर उसे चढ़ा दे, would you be ready? क्या आप तैयार होंगे? I mean the human part. मेरा कहने का मतलब वो इंसानी वाला हिस्सा। How come Abraham became ready so fast? इब्राहिम इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गए? There was some faith he had. कुछ विश्वास था जो उसके पास था। Remember, याद रखिए, in the hours of temptation, it is your faith that holds you. आप देखिए परीक्षा की घड़ियों में ये वो विश्वास है जो कि आपके थामे रहता है। If it is not faith, अगर विश्वास ना होता, you will be shattered to pieces. आप बिल्कुल बिखर जाते टुकड़े टुकड़े। It's your faith which is in God that holds you. ये खुदा में जो आपका विश्वास है जो आपको थामे रखता है। And we know that the bride has got that faith tonight. और हम जानते हैं दुल्हन के पास आज रात्रि वो विश्वास है। Praise God. खुदा का धन्यवाद हो। Why did Abraham become ready so fast? इब्राहिम इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गए? He had some faith, उसके पास कुछ विश्वास था, but that faith is not written in Genesis. लेकिन वो विश्वास उत्पत्ति में नहीं लिखा। Now follow this, brother. अब मेरे साथ चलने की कोशिश करें। Moses brought the law, मूसा व्यवस्था लेके आया and law was only a shadow. और व्यवस्था केवल मात्र छाया थी। So Moses could not write the whole thing तो मूसा उन संपूर्ण चीज को लिख नहीं सकता था, because he brought that law, क्योंकि वो व्यवस्था को लेके आया। and your law is just a shadow. और आप जानते हैं व्यवस्था केवल मात्र छाया है, And shadows give some details, और छाया जो होती है वो कुछ विस्तृतताएं देती है, but shadows cannot give the fullness. लेकिन जो छाया वो संपूर्ण चीज को नहीं बयान कर पाती। And that is the reason और यही कारण है you find that Moses describes Abraham
आप पाते हैं कि मूसा जो है वो इब्राहिम का उल्लेख देते हैं in the book of Genesis, उत्पत्ति किताब में, but Moses fails to describe his faith. लेकिन मूसा चूक जाते हैं इब्राहिम के विश्वास का बखान करने में। In some places, कुछ जगहों पे, not all, हर जगह नहीं, he believed God, he believed his voice, उसने खुदा पे विश्वास किया, उसने उसके आवाज पे विश्वास किया, which said, leave your father's home, leave Ur of Chaldees and go out. जिसने कहा कि अपने पिता के घराने को छोड़ दे तू और कसदियों के ऊर को छोड़ दे। He believed that. उसने इस पे विश्वास किया। Then he believed God when he was bringing the sacrifice. तब वो खुदा पे विश्वास कर रहा था जब वो कुर्बानी लेके आ रहा था। It's also written, it was accounted to him for righteousness. और ये भी लिखा गया कि ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। That is written. ये लिखा है। But what was that faith लेकिन वो विश्वास था क्या which took Abraham with his child Isaac to that mountain? जो इब्राहिम को अपने बेटे इसाक के साथ विवश किया कि वो उस पहाड़ पे जाए। I think you're understanding it. आशा करता हूं समझ रहे होंगे। Now that is not mentioned. अब इसका उल्लेख नहीं है। Read Genesis 22 if you can. अगर पढ़ सकते हैं तो आप जाके पढ़िएगा उत्पत्ति 22। Never you will find where is it written that he believed this. कहीं पर यह नहीं लिखा कि उसने इस बात पे विश्वास किया। You see, the unwritten part of the law was written by Paul in grace. आप देखिए व्यवस्था में जो अलिखित हिस्सा था वो पौलुस भाई ने अनुग्रह में लिख दिया। You see, Paul couldn't write, Moses couldn't write that faith. आप देखिए मूसा उस विश्वास को लिख नहीं पाया। He couldn't do it. वो नहीं कर पाया। But when the sacrifice was done, लेकिन जब कुर्बानी दी जा चुकी and now the faith was revealed, और अब जब विश्वास प्रकट हो गया, because the lamb, the real lamb had come. क्योंकि वास्तविक मेमना आ गया। It was not a shadow lamb. अब ये परछाई और छाया वाला मेमना नहीं है। It's the real lamb. अब ये हकीकी मेमना है। And when the real lamb had come and died, और जब वो हकीकी मेमना आया और मर चुका, that faith which was hid, आमीन, वो विश्वास जो कि पोशीदा था was now opened. अब खुल गया। That New Testament, वो नया नामा which was the unwritten part of the Old Testament, जो कि अलिखित हिस्सा था पुराने नामे का, which was in the blood of Jesus, जो कि यीशु मसीह के लहू में था, but then he was opened in 7 places. लेकिन जब वो 7 जगहों से खोला गया And when he uttered his 7 voices, और जब उसने अपनी 7 आवाजों को दिया and when that Holy Spirit came out, और जब वो पवित्र आत्मा बाहर निकल के आया, the New Testament came out, नया नामा बाहर निकल के आया, that faith was revealed. वो विश्वास प्रकट हुआ। Why Abraham so easily, even in that hour of temptation, took his only son Isaac to that mountain? क्यों इब्राहिम ने उस परीक्षा की घड़ी में अपने बेटे को लिया और क्यों लेके गया उस पहाड़ के ऊपर? What was that faith? वो विश्वास क्या था? He was not going blindly. वो अंधाधुंध नहीं चल रहा था। He was not weeping every minute with his handkerchief हर मिनट ऐसा नहीं था कि अपनी जेब से रुमाल निकाल के वो रो रहा हो and looking at his son. और बार-बार अपने बेटे की ओर देखता हो। Just few minutes. अब तो कुछ मिनटों का ही तू रह गया है। You will be sacrificed. तू कुछ मिनटों का मेहमान रह गया, अब तेरी तो कुर्बानी हो This is जाएगी। not the story. ये कहानी नहीं है। No. He's not saying anything. Sorry? He's not saying anything. वो कुछ कह नहीं रहा। And now Isaac asked him, और अब इसहाक ने उससे पूछा, Father, हे पिता, the wood is there, लकड़ी है यहाँ पर, fire is there, आग भी मौजूद है, where is the lamb? मेमना कहाँ है? And then Abraham gave a statement. और फिर इब्राहिम ने एक वाक्य बोला, My son, हे मेरे बेटे, don't worry, चिंता मत कर, God will provide a ram. खुदावंद एक मेढ़े का मुहैया करेंगे। How come you know Jehovah provides a ram? आप कैसे जानते हैं पापा यहोवा जो हैं वो मेमने को प्रोवाइड करते हैं? He said, I can't explain it, उसने कहा मैं समझा नहीं सकता, but I have a faith. लेकिन मेरे पास एक ईमान है And I know my faith is going to be confirmed. और मैं जानता हूं मेरा ईमान पुष्टिकृत होगा। He was not going to the mountain to slay Isaac. वो इसहाक को कुर्बान करने पहाड़ पे नहीं जा रहा था। He was actually going for the confirmation of his faith. लेकिन वास्तविकता में अपने विश्वास के पुष्टिकरण के लिए जा रहा था। And I want to show you, brother, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे भाई, he had a faith उसके पास एक विश्वास था which was in his heart, जो कि उसके हृदय में था, by which he went to that mountain. जिसके माध्यम से होते हुए वो जिसके चलाए वो गया इस पहाड़ पे। And when Isaac said, और जब इसहाक ने कहा fire is there, आग भी मौजूद है, wood is there, लकड़ी भी है, and he said, son, और उसने कहा बेटे, before he said that,
इससे पहले उसने ये कहा, he told his 3 young men, उसने अपने 3 जवानों से कहा, I and this lad मैं और ये लड़का are going जा रहे हैं and we'll come back. और हम वापस लौट के आएंगे। If you read the message, और आप संदेश पढ़ें, Brother Branham highlighted this point. भाई ब्रैनम ने इस वाले पॉइंट को, इस बात को उजागर किया। How do you know we are coming back? आप कैसे जानते हैं इब्राहिम भाई कि आप दोनों वापस लौट के आएंगे? You are going to offer him as a sacrifice. आप तो जा रहे हैं इसाक को कुर्बानी के रूप में चढ़ाने के लिए। You two are going, you will come alone. आप 2 जा रहे हैं लेकिन आप अकेले लौट के आएंगे? No, no, no. नहीं नहीं नहीं, We both will come back. हम दोनों लौट के आएंगे। In other words, दूसरे शब्दों में, even before climbing that mountain, यहाँ तक कि उस पहाड़ पे चढ़ने से पहले he knows something will happen. वो जानता था कुछ होगा। God will do some provision. खुदावन कुछ मुहैया करेंगे And this lad will not die. और ये लड़का मरेगा नहीं। Even if he dies. यहाँ तक कि अगर मर भी जाए। Now I'm quoting from Hebrews 11. अब मैं कोट कर रहा हूँ, आपको हवाला दे रहा हूँ इब्रानियों 11 से। God will raise him from the dead. खुदावन मरे में से इसको उठा लेंगे। He was going to that mountain with a resurrection faith. वो यानी कि इब्राहिम उस पहाड़ पे पुनरुत्थान वाले विश्वास के साथ जा रहा था। And now listen, brother, sister. अब सुनिए मेरे भाई मेरी बहन, What was the resurrection faith? It's your and my rapturing faith. जो इब्राहिम का पुनरुत्थान वाला विश्वास था, वो आपका और मेरा स्वर्गारोहण वाला विश्वास है। The same faith वही which विश्वास changes their body जो उनकी देह को बदल देता है, from death to life. मृत्यु से पारों के जीवन Is में। that same faith वही विश्वास है which Enoch had. जो हनोक के पास था, The same faith Abraham had. वही विश्वास जो इब्राहिम के पास The था, same faith Abel had. वही विश्वास जो कि हाबिल का The था, same faith Enoch had. वही विश्वास जो हनोक के पास था। But in the case of Enoch, लेकिन हनोक के मामले में he didn't have to die. उसको मरना नहीं पड़ा, He was changed वो alive. जीवित बदल गया। So we are seeing that faith. तो हम उस वाले विश्वास को देख रहे हैं। Where did Abraham receive this resurrection, or I would say now, rapturing faith? मैं पूछना चाहूंगा इब्राहिम को ये पुनरुत्थान का, बल्कि मैं कहूंगा ये स्वर्गारोहण यानी कि रैप्चर वाला विश्वास कहां से मिला? My God, this part is so stimulating. ओ ये वचन बहुत ही सुरूर में लेके आता है। That is where it says in Hebrews 11, और ये वो जगह है जब वो इब्रानियों 11 में कहता है, in verse 19, 19वीं आयत में, accounting, this is what Abraham taught. ये वो बात है जो कि इब्राहिम ने सोची, And Moses never wrote of it. और मूसा ने कभी इसके बारे में लिखा नहीं। What did he think? उसने क्या सोचा? That God was able to raise him up कि खुदावन योग्य है इसको जिलाने के लिए, even from the dead. यहाँ तक कि मृतकों में से भी। Why do you believe that, Abraham? इब्राहिम भाई आप ये विश्वास क्यों करते हैं? Next line says, अगली लाइन कहती है, from whence also he received him in a figure. जहां से उसने उसको एक दृष्टांत के रूप में भी ग्रहण किया। अब ये कहां किया? आमीन। What is Abraham thinking? इब्राहिम सोच क्या रहा है? Even if I kill him, यहां तक कि अगर मैं इसको मार भी दूं, God will raise him up. खुदावंद इसको जिला देंगे। Why do you think like that, Abraham? इब्राहिम भाई आप ऐसा सोचते क्यों हैं? He said, I'll now give you the reason I think this. उसने वो कहेगा आपसे कि मैं बताता हूं आपको क्यों, किस कारण मैं इस बात को सोचता हूं। When I was young, जब मैं जवान था and I had married my wife Sarah, और मैंने अपनी पत्नी सारा से शादी की, we loved each other हमने एक दूसरे से प्रेम किया and lived as husband and wife for many years, और कई साल तक हम पति पत्नी के रूप में रहे, but we never had a child. लेकिन कोई आस औलाद नहीं हुई। At the age of 75, 75 साल की उम्र में God gave me a promise. खुदा ने मुझे एक वायदा दिया, Leave your father's house अपने बाप के घर को छोड़ दे and leave this Babylon. और इस बाबुल को छोड़ दे, I'll take you to a land मैं तुझे एक भूमि में लेके जाऊंगा and I'll give you a land और तुझे एक भूमि दूंगा and I'll multiply your seed. और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। And I didn't have any seed. और मेरा उस समय कोई बीज और वंश नहीं था। Then I found this chap Eliezer, और तब मुझे ये शख्स मिला एलियाजा, and he has been serving with me. और वो मेरी सेवा करता रहा है। And then God confirmed his covenant. और जब खुदा ने अपनी वाचा को पक्का किया, That's Genesis 15. ये है उत्पत्ति 15, That surely I made a covenant with you. कि मैंने पक्की तौर से तेरे साथ वाचा बांधी है। And so I believed.
सो मैं विश्वास करता हूं that God would give me a seed. कि खुदावन मुझे भी ये वंश देंगे। But after Genesis 15, लेकिन उत्पत्ति 15 के बाद I and my wife Sarah, मैं और मेरी पत्नी सारा, we started having a human part. हमारा इंसानी एक हिस्सा था, वो काम करने लगा। And we started reasoning with the word. और वचन के साथ हम तर्क वितर्क करने लगे। And started thinking. और सोचने लगे, It's taking so much time. अरे इतना सारा समय लग रहा है, Will it really be fulfilled? क्या ये वास्तविकता में बात पूरी भी होगी? And Sarah told me. और सारा ने मुझसे कहा, Take that maid Hagar. उस दासी हाजरा को ले ले। And let the child born from Hagar be our child. और ऐसा हो कि वो बच्चा जो कि हाजरा के मार्फत पैदा वो हमारी औलाद बन जाए। So I took Hagar. सो मैंने हाजरा को ले लिया। I was 86-year-old at that time. उस समय मैं 86 साल का था। And I had a child. और मेरा एक बेटा था। We called him Ishmael. हमने उसका नाम इश्माइल रखा। For 13 years. 13 साल तक Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। But when I turned 99. लेकिन जब मैं 99 साल का हुआ, Listen to it now. अब इसको ध्यान से सुनिए। God appeared as El Shaddai. खुदावन प्रकट हुए एल शदाई के रूप में। And said, walk before me and be thou perfect. और कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। When I turned from 86 to 99. जब मैं 86 से 99 साल का हुआ, It is during that 13 years. ये वो 13 साल का वक्फा है। My natural seed and strength had gone. मेरा प्राकृतिक बीज और ताकत खत्म हो गई। I was in no condition to give a seed. अब मैं अब किसी भी हालत में बचा नहीं कि मैं आगे को बीज दे पाऊं। I had lost everything. सब कुछ खो बैठा था। I was dead in my body. अपनी देह में भी मर चुका था। And my natural seed was gone. और मेरा प्राकृतिक बीज जो मेरे अंदर था वो भी मर गया। And Sarah was barren. और सारा बांझ थी। It is at that time. ये है वो समय when he appeared. जब वो प्रकट हुए। And I laughed. और मैं हंसा। And he said, whatever. और उसने कहा कोई बात नहीं, you can laugh. तुम हंस सकते हो। But Ishmael is not the child. लेकिन इश्माइल वो औलाद नहीं है। Sarah will bring a child. सारा बेटा को जनेगी। But how can it be? लेकिन ये हो कैसे सकता है? Now she is dead physically. अब तो शारीरिक तौर से मर चुकी है। And I don't have any seed. और मेरे पास कोई बीज बचा नहीं to give to Sarah. ताकि मैं सारा को दे पाऊं। Ishmael was the child. इश्माइल बेटा है। But now I can't bring any. लेकिन अब मैं आगे कुछ और पैदा नहीं कर सकता। Read the Bible, you'll find it in the Bible. आप बाइबल को पढ़ेंगे आपको बाइबल मिलेगा। His seed was dead. उसका बीज मर चुका था। That's the condition of Abraham. अब ये है परिस्थिति हालत इब्राहिम की। Now this is something important. अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। And now God said, और अब खुदा ने कहा through Sarah, सारा के मार्फत you shall have a child. तेरे को एक बेटा होगा। Fine. ठीक है। And then he started waiting. और तब वो इंतजार करने लगा। Then something happened. फिर कुछ हुआ। Within 2 or 3 months. 2-3 महीने के अंतराल में That same God who appeared as El Shaddai. वही खुदा जो प्रकट हुए थे एल शद्दाई के रूप में Now comes in another form. अब एक और रूप में आते हैं। Now he's coming as Elohim. अब वो आ रहे हैं एलोहिम के रूप में। In a human body. एक इंसानी देह में। To the tent of Abraham. इब्राहिम के तंबू में। And Abraham recognizes that Elohim. और इब्राहिम पहचानते उस एलोहिम को। Come my Lord. आइए मेरे प्रभु। I wash your feet. मैं आकर के आपके पांव धोऊंगा। And please eat something. और आइए कुछ भोजन खाइए। For I know you have come. मैं जानता हूँ आप आए हैं। Where is Sarah thy wife? अब वो जो एलोहिम जो अब खुदावन जो आए हैं वो कह रहे हैं इब्राहिम से तेरी पत्नी सारा कहाँ है? He had just changed their names. उसने अभी हाल ही में उनके नाम बदल दिए थे। Listen to it carefully. ध्यान से सुनिए। Before the resurrection, I'll show it to you. I mean, God give me grace. काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे। Where is Sarah? सेरा कहाँ है? She's in the tent behind you. वो आपके पीछे तंबू में है। Then God said, अब खुदा ने कहा I will visit you according to the time of life. जीवन के ऋतु के अनुसार मैं आकर के तुम्हारी सुधि लूंगा। And Sarah shall have a child. सारा के बेटा होगा। The minute that word went forth. जिस मिनट ये शब्द बाहर निकले। Child from whom? किससे बेटा? He's talking for Sarah. वो सारा के लिए बात कर रहे हैं। But where will she get pregnated from? लेकिन वो गर्भधारण कहाँ से करेगी? Through Abraham. इब्राहिम के द्वारा। The promised word through Abraham will pregnate Sarah. वादा किया वो वचन इब्राहिम की मार्फत जाएगा और सारा को गर्भवती करेगा। That word will go through and act through Abraham.
एक क्रिया में होते हुए वो वचन इब्राहिम से जाएगा और सारा को गर्भवती करेगा। God will not pregnate her directly like he did Mary. और सीधे सीधे जैसे मरियम को गर्भधारण दिया था ऐसे नहीं करेंगे That's खुदाबंद। not Genesis 18. ये उत्पत्ति 18 में नहीं है, But he's used this man, लेकिन वो इस आदमी का इस्तेमाल करेंगे। 700 man, ओ माय गॉड, एक 7 अक्षरीय पुरुष ending with HAM. जिसका नाम का खात्मा HAM से होता है। My spoken word मेरा बोला गया वचन through you तेरे माध्यम से will pregnate her. उसको गर्भवती करेगा And I will quicken her mind. और मैं उसके दिमाग को जगा दूंगा, I'll quicken her womb उसकी कोख को जगा दूंगा to your seed. तेरे बीज के लिए। If I should say today, अगर मैं आज के संदर्भ में कहूं, to your spoken word. तेरे मुंह से बोले गए वचन के लिए आए 7 अक्षरीय पुरुष। Oh bride, if you can understand, हे दुल्हन, अगर आप इसको समझ पाए, I'll quicken this bride मैं इस दुल्हन को जगा दूंगा to your tapes, तेरे टेप्स के लिए, that she'll understand. कि वो समझ पाए It's not just the voice of a man. कि ये केवल मात्र किसी इंसान, किसी आदमी की आवाज नहीं है, It's the promise of God ये खुदा का वायदा है using a man's voice जो कि एक इंसान की आवाज का इस्तेमाल करती है to pregnate a church. ताकि एक कलीसिया को गर्भवती करे। Amen. आमीन। Now listen what happened. अब सुनिए क्या हुआ। In other words, दूसरे शब्दों में Abraham thinks, इब्राहिम सोच रहा है I will pregnate her. मैं इसको गर्भवती करूंगा, I'm dead. मैं तो मर चुका हूं, I've got no seed left. मेरे अंदर तो कुछ भी बीज बचा He said, नहीं। just wait for next 24 hours. उसने कहा केवल अगले 24 घंटे तक इंतजार कर। San Jose is the first place सैन होजे पहली जगह where है Brother Branham mentioned it. जहाँ भाई ब्रैनम इसका उल्लेख दिया। That time God visited Abraham. वो समय जब आके खुदा ने इब्राहिम की सुधि ली, That time he visited Sarah जब आके उसने सारा की सुधि ली, as Elohim in human flesh. एलोहिम इंसानी चामे में। By next morning, अगली सुबह तक when Abraham and Sarah got up in the tent, जब इब्राहिम और सारा अपने तंबू में जगे, Abraham said, hey Sarah, you look young now. इब्राहिम ने कहा सारा तू तो जवान दिखती है, And Sarah said, you are looking young, my man. और सारा ने कहा कि हे मेरे पति आप भी जवान दिख रहे हैं। What happened? क्या हुआ? When they became young, वो जवान कब बने? when they became young, जब वो जवान बने, in that presence, उस उपस्थिति में we stayed with them in that tent. जो उनके साथ उस तंबू में बनी रही। What happened? क्या हुआ? That very night, उसी रात that seed वो बीज got quickened. वो बीज इब्राहिम में जग गया, That seed got quickened. वो बीज जग गया। And now when the seed got quickened, और जब बीज जग गया, now he's once again eligible अब वो एक बार फिर से योग्य बन गए to pregnate his wife. कि अपनी पत्नी को गर्भवती कर सके। So what had happened? सो क्या हुआ था? Isaac came from the dead in a seed form. इब्राहिम मृतकों में से आया जो कि मरे बीज के रूप में पड़ा था उसके अंदर। Isaac. इसहाक जो मरा हुआ था, जो बीज मरा हुआ था, वहां से वो जी उठ के आया। And now Abraham believes, और अब इब्राहिम विश्वास करता है when he was in me, that is Isaac, in a seed form, जब इसहाक जो मेरे अंदर था एक बीज के रूप में, and God quickened him in me in the seed form. और खुदा ने मेरे अंदर उसको बीज के रूप में जगा दिया। Now once he's become flesh, अब जबकि वो एक बार शरीर बन चुका है, and now God is asking me to kill him. और मेरा खुदा मुझसे मांग कर रहा है कि मैं इसको कुर्बान करूं। He'll raise him up again. वो फिर से इसको जगा देंगे, जिला देंगे। Where was the basis of his rapturing faith? उसके उड़ाए जाने वाले विश्वास का आधार कहाँ था? On that visit of Elohim, उस एलोहिम की मुलाकात में which quickened that seed. जिसने उस बीज को जगा दिया। I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Inside you was the seed of God. आपके अंदर खुदा का बीज था, Inside you was a Christ. आपके अंदर मसीह था। But when Elohim came today, लेकिन आज जब एलोहिम आए and he came behind a flesh, और जब वो एक इंसानी जामे के पीछे आए, that same God वही खुदा that quickened that seed inside you, my brother, my sister, जिसने उस बीज को आपके अंदर मेरे भाई मेरी बहन जगाया, is that same God वही खुदा है to change your body. आपकी देह को बदलने के लिए भी। Are you catching the message? क्या संदेश आप पकड़ रहे हैं? That was the basis of his rapturing faith. ये उसके उड़ाने वाले विश्वास का आधार था। In other words, दूसरे शब्दों में I've already received that quickening in me. मैंने पहले से उस जगाए जाने को, जिलाए जाने को अपने अंदर प्राप्त कर लिया है। And now
He's asking me to kill him. और अब वो मुझसे मांग कर रहा है कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूं. He said, I will. उसने कहा मैं कर दूंगा. But I know this. लेकिन मैं ये भी जानता हूं. He has given a promise. उन्होंने एक वादा दिया है. In Isaac shall thy seed be called. इसाक ही से तेरा वंश कहलाएगा. He'll raise him from the dead. उसको वो मृतकों में से जला देंगे. In other words, दूसरे शब्दों में. now see what happened in the testimony today. अब देखिए क्या हुआ आज की गवाही में. That boy was still inside the womb. वो बेटा कोख के अंदर ही पाया जाता था. And something happened. और कुछ हुआ. It looked like an abortion. लगता था जैसे कि एक गर्भपात है It जैसा. looked like the child is dead. लगता था ऐसे जैसे कि बच्चा मर चुका है. But God quickened him. लेकिन खुदा ने उसको जिला दिया. Same happened in Abraham. यही चीज इब्राहिम के अंदर हुई. Out of a few thousand years, कुछ हजार सालों के बाद it was this very July. यही जुलाई का महीना था. I'm saying this not because I am saying it, Brother Branham said that. ये बात इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये भाई ब्रैनम ने बोली And I'll बात को. prove it to you. मैं आपके सामने साबित करूंगा. An angel visited Mary. एक दूत ने आकर के मुलाकात करी मरियम से. Think deep now. अब गहरा सोचिए. When was Brother Branham born? भाई ब्रैनम कब पैदा हुए? April the 6th, अप्रैल 6, 1909. 1909. When was Lord Jesus born? प्रभु यीशु मसीह कब पैदा हुए? April. अप्रैल. Around the same time. उसी समय के आसपास. I hope you can understand it. मैं आशा करता हूं समझ सकते हैं These आप. are some mysteries. ये कुछ भेद हैं. I don't go in that direction. मैं उस दिशा में नहीं जाता. If Christ is born around April 6, around that same time, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु पैदा हुए अप्रैल 6 के आसपास, and the period of the baby in the mother is 9 months, और आप जानते हैं कि वो पूरा समय जो गुजरता है एक बच्चे का अपने माँ की गर्भ में, वो लगभग 9 महीने का होता है. and you go 9 months back, और आप 9 महीने पीछे लौटे, you come to this day, July 5 or 6. आप आते हैं जुलाई 5 या 6 में. That was the time ये था समय when the angel visited Mary. जब आकर के दूत ने सुधि ली मरियम की. We are living in that date. हम उस तारीख में रह रहे We are हैं. living in that month हम उस महीने में रह रहे हैं when that mighty angel जब वो शक्तिशाली दूत came to a woman. एक स्त्री के पास आए. And when he came to that woman, और जब वो स्त्री के पास आए, you shall conceive. तू गर्भवती होगी. This time not with any man, इस बार किसी मनुष्य के सहायता से नहीं, but by what I'm saying. लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके द्वारा. And you shall have a child. और तेरे बेटा होगा. And you shall call his name Jesus. और तू उसका नाम यीशु रखना. In July, Mary conceived. जुलाई में मरियम ने गर्भ धारण किया. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते That's हैं? an amen. ये एक आमीन है. That very same month, उसी महीने after receiving that conception, उस गर्भ धारण को प्राप्त करने के बाद, later in that month, बाद में उस महीने she goes and visits her cousin, जाती है और अपनी कजन से मुलाकात करती है, whose name is Elizabeth. जिसका नाम इलिशबा है. And now there's a story going with Elizabeth. अब एक कहानी चल रही है इलिशबा के साथ. She has a child, उसके अंदर भी एक बच्चा है. and the child has not moved. और वो बच्चे में अभी तक कोई हरकत नहीं आई. The child is dead. बच्चा मरा हुआ है. The child is in the womb, but in a dead condition. बच्चा कोख में तो है, गर्भ में तो है, लेकिन मृतक हालत में है. And here comes Mary, और यहाँ आती है मरियम, who has conceived by the Holy Ghost. जिसने पवित्र आत्मा की सहायता से गर्भ धारण किया. And she visits her cousin. और वो जाती है मुलाकात करने अपनी What's कजन से. happening? क्या होता I है? shared recently in Sangrur, I think. मैंने अभी हाल ही में इसको संगरूर में शेयर One किया. believer with the gene word एक विश्वासी जीवांशी वचन के साथ going to another believer एक और विश्वासी के पास जाते हुए, who was conceived by the gene word. जिसने गर्भ धारण किया है जीवांशिक वचन के द्वारा. And when she goes there, और जब वो वहां जाती है, she exclaims that word. वो उस वचन को बोलती है. You know what? आप जानते हैं क्या? A mighty angel visited me एक महान शक्तिशाली दूत ने आकर मेरी सुधि ली and said, you shall have a child. और मुझसे कहा कि तेरे बेटा होगा. And you know, I'm experiencing a change. और आप जानते हैं मैं एक बदलाव को महसूस कर रही हूँ. You sisters know that. आप बहनें जानती हैं इस बात And so को. I can find So मैं इस बात को पाती हूँ that I have conceived. कि मैं गर्भवती हो चुकी And you हूँ. know something? और आप जानते हैं कुछ? He has already given me the name of that child. उसने पहले से मुझे उस बेटे का नाम बता दिया है. The name of the child will be Jesus. उस बेटे का नाम यीशु होगा. What's happening in July? जुलाई में क्या हो रहा है? When that word Jesus came out from this pregnant woman, जब ये शब्द, ये नाम यीशु इस गर्भवती स्त्री के मुंह से निकला, that baby inside Elizabeth's womb, इलिशबा की कोख में जो बच्चा था, it started jumping. वो कूदने लगा.
That jumping happened inside. ये कूदना अंदर हुआ. That became the rapturing faith of John the Baptist. ये बन गया रैप्चर वाला विश्वास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का. That same voice वही आवाज which quickened me in the womb. जिसने मुझे कोख में जगाया. Even if Herodias get me killed, यहाँ तक कि हेरोदियास आकर के मुझे मार भी दे. will be the same voice. He'll be the same voice वो वही आवाज होंगे that shall raise me from the dead. जो मुझे मृतकों में से जगा देंगे. John knew यूहन्ना जानता था even if he dies, यहाँ तक कि अगर वो मर भी जाए he shall rise again. वो दोबारा जी उठेगा. He had not seen him. हमने उसको देखा नहीं. I'm saying John had not seen him, यूहन्ना ने उसको देखा नहीं था. but John had heard his voice. आमीन. यूहन्ना ने यीशु को देखा नहीं था लेकिन उसकी आवाज को सुना था. What had happened? क्या हुआ? The coming of the Lord had begun. प्रभु की आवाज चालू हो गई. It had begun in a word form. ये चालू हुआ एक वचन के रूप में. It started as a conception. ये चालू हुआ गर्भधारण के रूप में. You know the message. आप संदेश जानते हैं. And when that seal was opened और जब वो मोहर खुली and that coming began, और वो आवाज चालू हुई. it began in the word form. ये चालू हुआ वचन के रूप में. What happened in the word form? वचन के रूप में क्या हुआ? That seed inside you and me. वो बीज आपके और मेरे अंदर. When we heard those 7 voices, जब हमने उन 7 आवाजों को सुना. it got quickened. ये जग गया. Are you listening, brother? क्या सुन रहे मेरे भाई? Now listen. अब सुनिए. When John came on the earth, जब यूहन्ना पृथ्वी पर आया he saw him whom he heard in the womb. उसने उसको देखा जिसको उसने कोख से सुना था. Now what's happening? अब क्या हो रहा है? The one he had heard as a word was now a man. आमीन. जिसको उसने शब्द के रूप में सुना था अब वो एक आदमी था. And when he came, he introduced him. और जब वो आया सामने तब उसने उसका परिचय दिया. He became his witness. वो उसका गवाह बन गया. And then what happened next? और अगली चीज क्या हुई? John was beheaded by that false system. यूहन्ना उस झूठे तंत्र के द्वारा उसका सर कलम कर दिया गया. But John knew this. लेकिन यूहन्ना इस बात को जानता This था. same voice यही आवाज which quickened me in that womb, जिसने मुझे उस कोख में जगाया था, which gave me the Holy Ghost, जिसने मुझे पवित्र आत्मा दिया था, is that same voice ये वही आवाज है who I'm seeing as a man. जिसको मैं मनुष्य के रूप में देख रहा Today हूँ. I'm seeing him, I'm seeing his face, I'm seeing his eyes, आज मैं उसके चेहरे को देख रहा हूँ, उसकी आंख को देख रहा and हूँ, I'm seeing a heavenly sign, और मैं एक स्वर्ग चिन्ह को देख रहा हूँ, a dove coming down. एक फाख्ता को नीचे उतरते I हुए. know this is that man. मैं जानता हूँ ये है वो आदमी. He'll baptize you with the Holy Ghost. वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा. I know you are understanding it. मैं सोचता हूँ कि आप समझ रहे हैं. And he was beheaded. और उसका सर कलम कर दिया How गया. long did John remain dead? यूहन्ना कितने समय तक मृतक रहा? Max 3 years. ज्यादा से ज्यादा 3 साल. Because that was during the ministry of the Son of Man. क्योंकि ये मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के दौरान था. Within 3 years, 3 साल के अंदर में when he was hanging on the cross, जब वो क्रूस पे लटके हुए थे and now that voice was getting killed as a ram. और जब वो आवाज मेढ़े के रूप में मर रहा था, Jehovah's provided ram यहोवा का मुहैया किया हुआ मेढ़ा from July to April. जुलाई से अप्रैल. And when he was opened in 7 places, और जब वो 7 जगहों से खोला गया, and when he was speaking 7 और जब voices, वो 7 आवाजें बोल रहा था, and he gave a loud voice after the 7 voices. और 7 आवाजों के बाद बड़े जोर के शब्द से चिल्लाया. What was that loud voice for? ये जोर का शब्द काय के लिए था? For the sleeping saints, उन सोए हुए संतों के लिए, for John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले to के लिए, hear it again. ताकि वो उसको दोबारा सुने. When he's now in the womb of the earth, अब जबकि वो पृथ्वी की कोख में है, he's hearing that voice वो उस आवाज को सुन रहा to है come back again. ताकि वापस लौट के आ That जाए. same voice वही आवाज which quickened him in a seed form जिसने उसे बीज के रूप में जगाया था, is that same voice वही आवाज है which quickened him in flesh form. जिसने उसको शरीर के रूप में जगाया. That was his rapturing faith. ये था उसका रैप्चर वाला विश्वास. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? When did that voice come? वो आवाज कब आई? When he heard it the first time? उसने पहली दफा उसको कब सुना? July. जुलाई में. Are you hearing it? क्या सुन रहे हैं आप? And now और अब I'm going to show you this. आपको ये दिखाऊंगा. The same faith Abraham had at Jehovah Jireh. वही विश्वास जो इब्राहिम के पास था यहोवा यिरे के समय.
it manifested in this way वो इस प्रकार से प्रकट हुआ that Isaac didn't have to die, कि इसहाक को मरने की जरूरत नहीं but है, he returned back alive. लेकिन वो वापस जीवित लौटेगा. There are some today आज कुछ हैं who never taste of death, जो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, but be changed alive. लेकिन जीवित बदल जाएंगे. Though death is hanging on them, यद्यपि मृत्यु उन पर लटकी हुई they है, are like any other man or woman, वो दूसरे आम इंसानों की तरह हैं, but they will not die. लेकिन वो मरेंगे नहीं. There is a ram एक मेढ़ा है with 7 horns, 7 सींगों के with साथ, 7 eyes 7 आंखों के साथ. in the last days. अंतिम दिनों में Are you understanding that, क्या समझ brother? रहे हैं आप मेरे भाई? God really bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. Now turn with me to the book of Ezekiel. अब मेरे साथ निकालें एजिकेल की किताब. Let me show you something. आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. Abraham was walking to Mount Jehovah Jireh, Moriah, which became Jehovah Jireh, with a rapturing faith. इब्राहिम बढ़ के जा रहा है उस मोरिया पर्वत पे जो कि रैप्चर वाला पहाड़ बन गया. उसके लिए He's going with a rapturing faith. वो जा रहा है एक उड़ाए जाने वाले विश्वास के साथ. He knew it's done. वो जानता ये हो चुका है, That's why he told the 3 men, इसलिए उसने 2-3 आदमियों से कहा we both will return back. हम दोनों वापस लौट के आएंगे. Hallelujah. हालेलुया. What is that faith that tells you, ये क्या विश्वास है जो आपको बताता है though you are taken to the hospital यद्यपि आप अस्पताल ले जाए गए and you may not return, और तुम वापस लौट के नहीं आओगे, but when you have faith, लेकिन जब आपके पास विश्वास होता है, you tell your loved ones आप अपने प्रियजन से कहते हैं and you tell everybody, और आप हर एक से कहते हैं I'm going मैं जा रहा हूं and I'll come back. और मैं वापस आ रहा हूं, Because you know क्योंकि आप जानते हैं somebody will be there in the operation theater. कोई होगा उस ऑपरेशन थिएटर में, Somebody will be there in the hospital कोई होगा वहां अस्पताल में, or there wherever you are, या जाके आप हैं वहां पे and save your life. और आपके जीवन को बख्श God दे. really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. Ezekiel chapter 1. एजिकेल उसका पहला अध्याय. Now we have traveled from Abraham, saw Mary, the same faith that operated in Abraham, operating through Mary in Elizabeth in July, and now we are seeing Ezekiel. हमने देखा कैसे वो विश्वास जो इब्राहिम के पास था वही विश्वास कैसे जुलाई में कार्यान्वित हुआ और वो गया मरियम के पास, और कैसे वो मरियम इलीशबा के पास गई और कैसे उसी विश्वास के द्वारा वो बेटा जो अंदर मरा हुआ था वो जी उठा. और अब हमारे इज़िकिएल में Chapter 1. पहला अध्याय. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Kibar, that the heavens were opened and I saw visions of God. 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था. तब स्वर्ग खुल गया और मैंने खुदा के दर्शन पाए. You know Jewish calendar. आप जानते हैं यहूदी कैलेंडर को. April is the first month. अप्रैल पहला महीना है, May is the second month. मई दूसरा है, June is the third month. जून तीसरा है And July is the 4th month. और जुलाई चौथा महीना है. Even if you check your Scofield, you'll find that. अगर आप अपनी स्कोफिल बाइबल चेक करेंगे आपको यही मिलेगा. It was July. ये जुलाई था. On the 5th day of the month. उस महीने के 5वीं तारीख को, July 5. जुलाई 5. What's happening on July 5? जुलाई 5 को क्या हो रहा है? Heavens are opened. स्वर्ग खुल रहा है. God is getting ready खुदावन तैयार हो रहे हैं on that July the 5th उस जुलाई 5 को, to step down on earth ताकि पृथ्वी पर नीचे उतर के for आए. a man, एक आदमी के लिए, for a prophet, एक नबी के लिए, with a message. एक संदेश के Oh, साथ. church, catch it. ओ कलीसिया इसको पकड़िए. Where is he sitting? वो बैठा कहाँ है? With some souls in prison. कुछ रूहों के साथ जो कैद में हैं. He's not sitting with some who are loose. कुछ ऐसों के साथ नहीं बैठा जो आजाद हैं. Read the Bible. बाइबल को पढ़ें. I'm sitting with some captives. मैं कुछ बंधुओं के साथ बैठा हूँ. He was sitting with those who are in captivity. वो उनके साथ बैठा था जो कि बंधुआई में थे. He's living among souls वो कुछ ऐसी रूहों के बीच में रह रहा था who are in prison, जो कि कैद में थे, who are in some captivity. जो कि कुछ बंधुआई में थे. But while he's sitting, लेकिन जब वो बैठा है, heavens were opened. आकाश खुल गया And now he's going to see a vision. और अब वो एक दर्शन देखेगा. Oh, church of the living God, follow this. हे जीवते खुदा कलीसिया इसका अनुकरण करें. By the river Chebar, कबार नदी के किनारे heavens was opened. आकाश स्वर्ग खुल गया And I saw the visions of God. और मैंने खुदा के दर्शन देखे. What's happening? क्या हो रहा है? And I looked, verse 4. चौथी आयत. जब मैंने देखा, Read third verse. तीसरी आयत में लिखा है, The word of the Lord came expressly
unto Ezekiel the priest. यहोवा का वचन यहेजकेल याजक के पास पहुंचा. That priest did not know I am a prophet. वो याजक जानता नहीं अभी तक कि मैं एक नबी हूं. He only knew I am a priest. वो केवल इतना जानता था कि मैं याजक हूं. I am the son of Buzi. मैं बूजी का बेटा हूं. I am a priest. मैं याजक हूं. But now God will lift him up to another office. लेकिन अब खुदावंद उसको उठाएंगे एक और ओहदे तक. That July the 5th उस जुलाई 5 को will be his commissioning. उसका कमिश्निंग होगी. That July the 5th वो जुलाई 5 will be a step up in his ministry. उसकी सेवकाई में एक ऊंचा पदार्पण होगा. He'll not just be a priest. वो केवल याजक नहीं रहेगा. He'll not just be one of those. वो बाकी उनके समान नहीं रहेगा. But he'll be elevated to another place लेकिन एक और स्थान पर वो उठाया जाएगा. where he'll be told that you are a prophet. जहाँ उसे ये कहा जाएगा तू एक नबी है. Because when you read the Bible, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, when he's commissioned, जब उसको सेवकाई मिलती है, he's told, उससे कहा जाता now है start saying, thus saith the Lord. अब यहोवा यूं फरमाता करके बोलने लग. And even if the people don't hear you, और यहाँ तक कि अगर लोग तेरी सुने भी ना, one thing they will understand. एक बात वो समझेंगे, A prophet has come amongst us. एक नबी हमारे बीच में आया है. He's telling Ezekiel वो एजेकिएल से कह रहा है on that July the 5th, वो जुलाई 5 को now you're stopping your preaching ministry. अब तू अपनी प्रचार की सेवकाई को अंत कर रहा है. Now you're entering a prophetic ministry. अब तू Wow. एक नबूवत वाली सेवकाई में प्रवेश कर रहा You're है. getting ready to prophesy. तू तैयार हो रहा है नबूवत करने के लिए. You're getting ready to prophesy to the nations. तू तैयार हो रहा है कि राष्ट्रों के सामने तू नबूवत I'm कर. giving you a commission. मैं तुझे सेवकाई दे रहा हूं. How does his commissioning begin? उसकी सेवकाई करना कैसे चालू हुई? Number one, पहली on that July the 5th, पहली बात जुलाई 5 को a heaven opened. आसमान खुल गया. If you remember the message, और आपको संदेश मालूम हो, July the 3rd, जुलाई 3 he saw the preview of the bride. उसने दुल्हन को पूर्व छाया में देखा. And he saw an alpha bride. और उसने एक अल्फा दुल्हन को देखा. And he saw an omega और bride. फिर ओमेगा दुल्हन को देखा. In between he saw the nominal churches. और बीच में नामधारी चर्च देखे. But he saw that bride again. लेकिन उस दुल्हन को दोबारा देखा. Those long skirts, वो लंबे लंबे स्कर्ट्स के long साथ, hairs, लंबे बालों के साथ, marching to the tune of onward Christian soldiers. यीशु के सिपाही कदम मिला के चल इस धुन में होते हुए. And those which represented the church, और वे जो कि कलीसिया को दर्शाते थे, they went down to hell. वो नामधारी गिरजे वाले जो दर्शाते थे वो तो चले गए नीचे हद नरक में. And these people, और ये लोग after walking some distance, कुछ दूरी चलने के बाद some were getting out of step. और कुछ अपनी रेखा से बाहर आ रहे And he थे. said, get back in line. और जगह रेखा में वापस आ जाओ. And after walking a little distance, और थोड़ी दूर चलने के बाद he saw them going up. उसने देखा कैसे वो ऊपर जा रहे हैं. That was July the 3rd. ये जुलाई 3 था. On July the 3rd, he saw gravitation losing its power on some people. जुलाई 3 को उसने देखा गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी सामर्थ्य को खो रहा है कुछ लोगों के ऊपर से. July the 4th, जुलाई 4 American Independence Day, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे. when the Liberty Bell was rang, जब आजादी घंटी बजाई गई and Thomas Jefferson और थॉमस जेफरसन signed the Declaration of Independence. उसने हस्ताक्षर किया उस आजादी के पत्र के ऊपर. Immediately the next day, तुरंत अगले दिन on July the 5th, जुलाई 5 here comes the prophet यहाँ पे आते हैं नबी with Isaiah 53 या शायद 53 के to साथ thunder a message. एक संदेश को गरजते हुए. What's that message? वो संदेश क्या है? Masterpiece. सर्वोच्च Who रचना. had believed our report? हमारे समाचार पे किसने And he विश्वास? goes to Michelangelo, और वो चाहते हैं माइकल एंजेलो पे, to that great sculptor उस महान शिल्पकार पे who made that Moses. जिसने मूसा को बनाया. And he said, speak. और उसने कहा बोल. And there was a piece chipped out. और एक टुकड़ा उसमें से निकला था घुटने से. And his whole message और उनका पूरा संदेश was on that chipped out piece. वो था उस टुकड़े से जो निकला हुआ था उसके ऊपर. And he said, Christ, और उन्होंने कहा मसीह Jehovah's masterpiece. यहोवा की सर्वोच्च When he रचना. died on the cross, जब वो क्रूस पे मरे God said, speak. खुदा ने कहा बोल. And he chipped out from his side. और उसने उसकी पहलू में से एक टुकड़ा निकाला And he's made a और bride. उससे दुल्हन बना दिया. In these 7 church ages, इन 7 कलीसिया कालों में Luther was the feet, लूथर पैर था, Wesley was the hands, वेस्ली हाथ थे, Pentecostals were the tongues, पेंटिकॉस्टल जुबान थी, Brother Branham had the eyes, भाई ब्रैनम आंखें and हैं. now the headship has come. और अब हेडशिप आ चुकी है. She's ready. वो तैयार है. He's preaching that masterpiece. वो सर्वोच्च रचना का प्रचार कर And रहे then हैं. he shares this vision. और तब वो Then he shares this vision. और तब वो इस दर्शन को शेयर करते He हैं. said, why?
on this July the 5th, I'm bringing masterpiece. और तब उन्होंने कहा मैं क्यों इस जुलाई 5 को सर्वोच्च रचना ला रहा हूं. God has told me, खुदा ने मुझे बताया है, though I'm not able to see, यद्यपि मैं देख नहीं सकता, but there will be a bride. लेकिन एक दुल्हन होगी. There will be some people कुछ लोग who होंगे walk like an oak. जो हनोक की तरह And चलेंगे. after some time, और कुछ समय के I बाद saw them going up. मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा. Oh, that vision ओ वो दर्शन shared on July the 5th, जो कि व्यक्त किया गया जुलाई 5 को, seen on July 3rd, जुलाई 3 को देखा गया, but shared on July 5th. लेकिन जुलाई 5 को शेयर किया गया. What was he sharing? वो क्या शेयर कर रहे थे? A rapture. एक रैप्चर को, A rapture. एक रैप्चर को. Then Ezekiel 1 एजेकिएल 1 is not just the commissioning of Ezekiel. ये केवल एजेकिएल की सेवकाई को देना नहीं है, It has a purpose. उसका मकसद है. Because the same vision Ezekiel saw in chapter 1 क्योंकि वही दर्शन जो कि एजेकिएल ने पहले अध्याय में देखा is the same vision John saw in Revelation 4. ये वही दर्शन है जो कि यूहन्ना ने देखा प्रकाशित वाक्य 4 में. When did he see it? कब देखा When he उसने? had heard a door open in heaven. जब उसने स्वर्ग में एक द्वार खुला देखा. What did Ezekiel saw? एजेकिएल ने क्या देखा? Heaven opened. स्वर्ग को खुला हुआ. What did John see? यूहन्ना ने क्या देखा? Heaven opened. स्वर्ग को खुला हुआ And a voice, और एक आवाज, the same voice वही आवाज which made him turn. जिसने उसे मुड़वाया था, That same voice वही आवाज that quickened the seed जिसने बीज को जगाया था in another season एक फलक मौसम में, is the same voice वही आवाज है which cries like a trumpet. जो कि तुरई के से शब्द जैसा है. Come up hither. यहाँ ऊपर आजा. And the Bible says, बाइबल बताती है immediately तुरंत he came in the spirit मैं आत्मा में आ and गया I was in heaven. और मैं स्वर्ग में आ गया. Rapture. रैप्चर, Bride is raptured. दुल्हन का रैप्चर हो गया. Then he sees that vision. ये देखता है वो दर्शन. Then Ezekiel's vision, John's vision is the same vision and is tied to the rapture of the bride. और एजेकिएल का दर्शन और यूहन्ना का दर्शन दोनों जुड़े हुए हैं और ये जुड़े हैं दुल्हन के रैप्चर के साथ. If you can understand it, अगर आप इसे समझ पाएं, how did the vision begin? दर्शन चालू कैसे हुआ? It began with a rainy day. ये चालू हुआ एक बरसाती दिन के साथ. That July the 5th, वो जुलाई 5 he sees a vision of a rain. वो एक बारिश की के दर्शन को देखता है. It's a rainy day. ये एक बारिश वाला दिन है. It's a cloudy day. एक ऐसा दिन है जिसमें बादल है. Hallelujah. हालेलुया. Let's see the message. आइए संदेश को देखते And हैं. I looked verse 4. और चौथी आयत में लिखा है मैंने Because देखा, after this vision, क्योंकि इस दर्शन के बाद he'll understand वो समझेगा I'm not just a priest, मैं केवल याजक नहीं हूँ, I'm a prophet. मैं नबी हूँ. I will prophesy. मैं नबूवत करूंगा. I've been given something मुझे कुछ चीजें दी गई that है I can कि मैं prophesy. नबूवत कर सकूं. Prophesy. नबूवत करो. Prophesy. नबूवत कर. In these last days. इन अंतिम दिनों में Oh, church. ओ कलीसिया, July the 5th will change him. जुलाई 5 उसको बदल देगा. And I looked, और मैंने देखा and behold, a whirlwind और मैंने देखा एक चक्रवाती, came out of the north. एक चक्रवाती तूफान जो है वो आया उत्तर की ओर से. A great cloud. एक महान बादल And a fire enfolding itself. और एक आग अपने आप को खोलते हुए. Fire was enfolding means उसमें लपटें निकल रही थी. आग में से लपटें निकल रही थी And a brightness was about it. और उसके चारों ओर उजियाला था. And out of the midst thereof as the color of amber. और उसके बीच में छलकाए हुए पीतल की रोशनी. Amber color is yellowish green color. एम्बर रंग जो होता है पीला और हरा रंग मिला हुआ होता है. Out of the midst of the fire. उस आग के बीच में से Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, I always said when the pillar of fire appeared, it's yellowish green, yellowish green. मैंने हमेशा कहा है जब आग का सतून आता है वो हरा और पीला रंग मिला हुआ होता है. He said, but now when the science took its picture, लेकिन अब जब विज्ञान ने उसकी तस्वीर खींची है, now it's proved. अब ये साबित हो चुका You है. can see that yellowish green color. आप उस हरे पीले रंग के मिले हुए को देख सकते He हैं. said that time they didn't have cameras, उन्होंने कहा उस जमाने में कैमरा नहीं होते थे, but today we have devices लेकिन आज हमारे पास यंत्र हैं by which we can photograph that light of God. जिसके माध्यम से हम खुदा की रोशनी की तस्वीर खींच सकते He's हैं. tying that Ezekiel's vision to that same pillar of fire that came and visited him, that came in Lakeport, California.
वो जोड़ रहे हैं एजेकेल के दर्शन को उसी, और जो रोशनी आई उसको जोड़ रहे हैं उसी रोशनी के साथ जो कि लेक पोर्ट कैलिफोर्निया में आया, वही रोशनी जो कि भाई ब्रैनम के ऊपर आई। We don't have that screen. Yes, Otherwise, I would have showed it. yeah. You have it? Yes. Can you show me that Lakeport, California picture, brother? If you have it. Lakeport, California. Lakeport, California picture, if you have it. If you don't, no problem. But and here you can see that picture. बेशक आप उस तस्वीर को देख सकते Can हैं। you see that pillar of fire? क्या आप उस आग के सतून को देख सकते हैं? If you see it closely, अगर आप पास से देखें, it may look to you as orange, आपको लगेगी तो जैसे ये संतरे रंग की है, but it is not actually. लेकिन वास्तविकता में ऑरेंज नहीं है। It is yellowish green. ये पीला और हरा रंग का मिश्रण है। And when you see the Lakeport picture, और जब आप लेक पोर्ट कैलिफोर्निया की तस्वीर को देखते you'll हैं, see that same thing. आपको वही चीज मिलेगी। And when he's preaching Revelations 4, और जब वो प्रचार कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 4 वाली श्रृंखला, yes, you got that picture, brother. Can you see that? क्या इसको देख सकते हैं आप? That's Brother Branham on the pulpit. ये भाई ब्रैनम पुलपिट पे है, There's another Brother Branham, और आप पाएंगे पीछे ऊपर एक और भाई ब्रैनम है, old, not 21 years. 21 साल के नहीं लेकिन बुजुर्ग। It's not old William Branham. ये भाई, Sorry, young William Branham with hairs. ये भाई जवान भाई ब्रैनम नहीं है बालों के साथ, But that same Brother Branham between the lilies, same Brother Branham at a pulpit lifted a little high. और वही भाई ब्रैनम उन शोषणों के बीच में जो कि मंच पे है, और वही भाई ब्रैनम जो कि थोड़ा ऊपर उठाए गए, आप देखिए बिल्कुल बाई ओर। भाई ब्रैनम नहीं उठाए गए, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। समझने की कोशिश करें ब्रदर, हुआ क्या वहां पे। मुझे कोई बताएगा कि आपकी थियोफनी क्या बुद्धि है, किसी की भी जो बन रही है जिसमें हम जाएंगे। 21-22 साल नबी ने बोला, ये बुजुर्ग क्यों है? ये भाई ब्रैनम बिना बाल वाले, अगर आप ध्यान से देखिए आपको तस्वीर दिख जाएगी। दिख रहा आपको तो पास में दिख ही रहा होगा। तो ये कौन सा भाई विलियम ब्रैनम दूसरा वाला है? Getting it? क्या बात समझ में आ रही है? That is Brother Branham's theophany. भाई ब्रैनम की थियोफनी? No sir. नहीं नहीं नहीं, It's something else. ये कुछ और है। This is God Logos and morphing in his form. ये खुदावन लोगोस हैं जो कि उनके रूप के अंदर एनमॉर्फी हो रहे हैं। वो खुदा ब्रैनम बन गया कि ब्रैनम में घुसे। तो ये तो भाई ब्रैनम मनुष्य है, वो खुदा भाई ब्रैनम बना ताकि उसमें घुस के प्रचार करे। Amen, amen. This is not skim milk. ये पतला दूध नहीं है। Everybody cannot digest these things. हर एक कोई इन बातों को पचा नहीं सकता। Amen. कई बार मीटिंग्स में हुआ, प्रचारक प्रचार कर रहा है, वो एक और प्रचारक वैसा ही दिख रहा है। वो दूसरा प्रचारक कौन है? कई लोगों ने बहुत दिनों तक सोचा उसकी थियोफनी मैंने देख ली। आपने उसकी थियोफनी नहीं देखी, आप देख ही नहीं सकते अभी उसकी थियोफनी। सच है। समझ में आ रही है? हाँ, देख भी सकते हैं, लेकिन वो थियोफनी नहीं थी। वो क्या था? वो खुदा था जिसने उसका रूप लिया जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। आमीन आमीन। ऐसा हो सकता है एक दिन एक शिमौन खड़ा है पुलपिट पे और एक दूसरा शिमौन यहां खड़ा हो, तब कोई बहन या भाई देखे दो शिमौन कैसे हैं? तो सवाल इस बात का है कि शिमौन दो नहीं हो गए। एक तो शिमौन वो है जो है ही भाई इंदल का बेटा, लेकिन एक दूसरा शिमौन खुदा शिमौन बना। खुदा ने रूप ले लिया। आमीन। जग का पानी को जग में डालो, जग का रूप। पानी को ग्लास में डालो, ग्लास का रूप। पानी को केतली में डालो, केतली का रूप। यही है हमारा लोगोस। आमीन। इंदल में भाई में घुसा, वो इंदल बन गया। भाई शिमौन में घुसा, शिमौन बन गया। भाई जोशुआ, दीपक, इनमें भाई भूपेंद्र, भाई जॉन, भाई अशोक, मुझ में कहीं पर भी बहन में घुसा, वो रूप बन गया। आमीन। उसकी आवाज, उसकी जुबान, उसका रूप, आप ये जानते हैं। तो ये विलियम ब्रैनम भाई कौन है? दिस इज द पैराडॉक्स। ये अजूबा है। दैट इज ह्यूमन विलियम ब्रैनम। वो इंसान भाई विलियम ब्रैनम है। दैट इज लोगोस विलियम ब्रैनम। और वो जो है पीछे ऊपर, वो लोगोस भाई विलियम ब्रैनम। दैट इज द वर्ड फॉर्म। वो वचन वाला रूप है which took his form, जिसने उसका रूप लिया, which can take anybody's form. जो किसी का भी रूप ले सकता है। But if you see it, लेकिन अगर आप इसे देखें, the whole atmosphere has changed. पूरा का पूरा वातावरण वहां बदल गया है। And you can see that light. और आप वहां पे उस रोशनी को देख सकते Can हैं। you see some lines and streaks coming down? क्या आप कुछ लाइंस को और कुछ धारियों को नीचे आते देख सकते हैं? Brother Branham refers them to the streaks of a rainbow.
भाई ब्रैनम ने इसका संकेत दिया जैसे एक मेघ धनुष एक शत्रु की पींग की जैसे धारियां होती हैं। If you can see it carefully, अगर आप ध्यान से इसको देखें, I have been able to only find out one, मुझे एक ही मिल पाया है, but some may be able to find more. Maybe somebody finds more. शायद किसी और को कुछ और मिल जाए। But you can even see the beasts. लेकिन आप यहाँ पर जानदार भी देख सकते हैं। You can see the face of the lion. You can. आप सिंह के शेर के चेहरे को देख सकते हैं। You must be having that picture at home. आपके पास वो तस्वीर घर पे होगी। Brother Branham took this picture भाई ब्रैनम ने तस्वीर को लिया and went to Ezekiel 1 और एजेकिएल 1 पे गए and started explaining this vision. और इस दर्शन को समझाने लगे। This picture from there, ये तस्वीर वहां से he connected this picture with Ezekiel 1. उन्होंने इस तस्वीर को एजेकिएल 1 के साथ जोड़ दिया। I don't have time to go because it's already 8 o'clock. 8 बज चुके, मेरे पास समय नहीं है, But you are hearing it. लेकिन आप इसको सुन रहे हैं। Listen to it now. अब इसको ध्यान से सुनिए। He sees this fire. वो इस आग को देखते हैं He sees this amber color. और वे झलकाए पीतल की रोशनी को देखते हैं। Verse 5. 5वीं आयत, Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures. और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। Later on he'll explain. बाद में वो समझाएगा। One is looking like a lion, एक शेर की मानंद दिखता है, one like an ox, एक बछड़े की मानंद, one like a man, एक मनुष्य की मानंद and one like an eagle. और एक उकाब की मानंद। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? He sees this whole vision. ये संपूर्ण दर्शन वो देखता है। Finally, he describes the beasts, आखिरकार वो उल्लेख देता है इन जानदारों का। and they together are joined with their wings, और वो एक साथ अपने पंखों के साथ जुड़े हुए हैं and they are upon a wheel. और वो एक चक्री के ऊपर हैं। Wheels are there, वहां पहिए हैं and there's a wheel in the middle of the wheel. और चक्री के बीच में एक चक्री है। I don't have time, I don't go there, but you can go home and read it. मेरे पास समय नहीं कि मैं वहां जाऊं, लेकिन आप घर जाके पढ़ सकते हैं। But now when you read from verse 26, लेकिन अब आप 26वें आयत से पढ़ें। above these beasts इन जानदारों के ऊपर and above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne. जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर एक सिंहासन था, As the appearance of a sapphire stone. कुछ नीलम का बना हुआ था। And upon the likeness of the throne was the likeness of the appearance of a man above upon it. और इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। I hope you're listening carefully. मैं सोचता हूं ध्यान से सुन रहे होंगे। What did Ezekiel see? एजेकिएल ने क्या देखा? Oh, this may be a little deep. हो सकता है यह थोड़ी गहरी बात हो। He saw the appearance of a man. उसने मनुष्य जैसा सरीखा किसी को देखा। Whom did he see? उसने किसको देखा? Christ. मसीह को। Yes, it was Lord Jesus Christ. बेशक वो प्रभु यीशु मसीह थे, But in another form. लेकिन एक और दूसरे रूप में। What form? कौन सा रूप? A throne. एक सिंहासन। And now just see what's written here. और देखिए यहाँ क्या लिखा है, It's very clear. बहुत ही स्पष्ट है। And I saw as the color of amber, और मैंने झलकाया कि पीतल की रोशनी देखा, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward. It was totally fire. उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर से मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल का सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। I'm asking you a question. मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, Who is this man? ये आदमी कौन है? On the throne. सिंहासन पे Christ. मसीह। Where is the fire? आग कहाँ है? Loins upward, उसकी कमर से ऊपर, loins downward. कमर से नीचे। I'm asking you a question. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, What is in the loins of a man? एक आदमी के कमर यानी कि सुल्फ में क्या होता है? His seed. उसका बीज। Where is the fire? आग कहाँ है? On his loins. उसकी लॉइंस, उसकी कमर के ऊपर। Every seed हर एक बीज। is anointed by that fire. Oh God bless you, अभिषेकित है उस आग के द्वारा। That's why on the day of Pentecost, इसलिए पेंतेकोस्त के दिन and from that time, और उस समय से every time, हर दफा when a child is born in the kingdom of God, जब एक बच्चा पैदा होता है खुदा के राज्य में, that fire comes वो down आग नीचे आती है upon that seed उस बीज के to ऊपर, identify it. ताकि उसको पहचान दे। You are in my loins.
तू मेरी सुल्क में था when I was sitting on my जब throne, मैं अपने सिंहासन में बैठा था, and you will sit with me on my throne. और तू मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। I think you're understanding it. मैं सोचता हूँ समझ रहे होंगे आप। So if the pillar of fire appears here, सो अगर आग का सतून यहाँ प्रकट होता है, some seed from his loins must be here. तो जरूरी है उसके कमर में, उसकी सुल्क में कुछ बीज हो जो कि Oh, it's a होंगे। matter to rejoice. ये आनंद का विषय है। When is he seeing this? ये कब देख रहे हैं वो? July the 5th. जुलाई 5 को। Notice this carefully. इसको ध्यान से देखिए। He saw this total fire इसने संपूर्ण आग को देखा as the appearance of a man. एक मनुष्य के आकृति के रूप में। Now this is deep. अब ये गहरी बात है, It may stumble you a little bit, हो सकता है इससे आपको थोड़ी ठोकर लगे, but please don't be. लेकिन ऐसा मत करना। What did he see? वो क्या, उसने क्या देखा? Logos लोगोस, sitting on the throne, सिंहासन में बैठे हुए, complete fire. संपूर्ण आग। And when he looked closely, और जब समीप से देखा, he saw another Ezekiel. उसने जब पास से जाकर देखा, उसने देखा एक और एजिकिएल है। That fire was now getting ready to enter a man. वो आग अब तैयार हो रही थी कि अब एक आदमी के अंदर प्रवेश करे। Initially it was fire. शुरुआत में तो वो आग था, Then the fire took a form फिर आग ने रूप लिया to enter that man. ताकि उस आदमी में प्रवेश कर I'm जाए। showing you the sequence of that vision. मैं आपको क्रम दिखा रहा हूं उस दर्शन का, How that vision unfolded. कैसे वे दर्शन खुला। That fire came in that upper room. वो आग आई ऊपरी कोठरी में, Then it divided in tongues. फिर वो विभाजित हो गई जुबानों में, Then it came upon every believer. फिर हर एक विश्वासी को पर आके ठहर गई, And they were filled with the Holy और वे Spirit पवित्र आत्मा से भर गए to fulfill the prophecy of Joel. ताकि योएल नबी की भविष्यवाणी को पूरा करें। What happened? क्या हुआ? The throne सिंहासन, came in a man. सिंहासन एक आदमी के अंदर आ गया। That seat came in a man. वो सिंहासन, वो गद्दी एक आदमी में आ गई। Can you show me the Lakeport picture again, brother? क्या लेकपोर्ट कैलिफोर्निया वाली तस्वीर भाई दोबारा दिखा सकते हैं? Can you show me that picture? लेकपोर्ट कैलिफोर्निया वाली तस्वीर। Yes, brother, if you can. If you see, अगर आप देखें, I just showed it to you. मैं आपको दिखाता हूं। You have just seen Brother Branham with lilies. आपने भाई ब्रैनम को इन शोषणों के साथ देखा, Is that right? ये बात सही है? तो ऐसी पुलपिट से प्रचार कर रहे हैं जहां फूल भी लगे हुए थे। कुछ समझ में आ रही है? फिर वो फूल बड़े हो गए। आमीन। तस्वीर है सामने है आपके, थोड़ा आगे देखिए। क्या वो दिख रहा है? पीछे एक आदमी का चेहरा, उसकी टुड्डी दिख रही है, उसकी नाक भी दिख रही है, उसके गाल यूं दिख रहे हैं। एंड he's behind Brother Branham. भाई ब्रैनम के जो पुलपिट पे खड़े ठीक उसके पीछे आप एक देखें, एक मनुष्य का चेहरा है। Don't get confused. भ्रमित ना हो, But I want to show you something. लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता एक हूं। आम कमरा था, आम कमरा स्वर्ग बन गया। स्वर्ग एक कमरे में उतर गया। आमीन। कैसा हो सकता है कि यहां भी ऐसा हो जाए? आमीन, आमीन। I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। You can see that face. आप उस चेहरे को देख सकते हैं। Brother Branham talks about the rainbow. भाई ब्रैनम बातचीत करते हैं उस मेघधनुष की। You can see lion also. आप वहां पर सिंह भी देख सकते हैं। The beasts are there. जानदार वहां है, But एक चीज ध्यान से दिख नहीं रही. Where is the throne? सिंहासन कहां है? You can't see the throne. आप सिंहासन नहीं देख सकते। You know why? आप जानते हैं क्यों? It's in that man. वो उस आदमी के अंदर है सिंहासन, Because now the throne is in that man. क्योंकि अब वो सिंहासन उस आदमी के अंदर है। He is surrounded by the beasts. क्योंकि अब वो आदमी के अंदर सिंहासन आ गया है, इसलिए सिंहासन के तो चारों ओर जानदार हैं, तो इसलिए इस आदमी के चारों जानदार हैं। The rainbow has come around him. मेघधनुष उसके चारों ओर आ चुका है। Why? क्यों? Logos is in that man. लोगोस उस आदमी के अंदर है। Logos came in Ezekiel. लोगोस एजिकेल के अंदर आ गया। Logos came in Brother Branham. लोगोस भाई ब्रैनम के अंदर आ गया। Can it be possible क्या ये संभव है? that today, July the 5th, आज जुलाई 5 को Logos comes in a church? लोगोस एक कलीसिया में आ जाए, Logos comes in a brother? लोगोस एक भाई में आ जाए, Logos comes in a sister? लोगोस एक बहन में आ जाए। It is. वो आ गया है। इतना लंबा चौड़ा दर्शन किस लिए?
After that whole vision, इस लंबे चौड़े दर्शन के बाद I heard a voice. मैंने एक आवाज को सुना, Stand up, O son of man. हे मनुष्य के पुत्र, खड़े हो जा। That voice is not interested in others. वो आवाज की दिलचस्पी बाकियों में नहीं है। The lion is there, the ox is there, the man is there, the eagle is there. वहां पर सिंह है, वहां बछड़ा है, मनुष्य है, उकाब है, Everybody is there. हर एक कोई वहां है। But the voice is talking to this man. लेकिन आवाज संबोधित है केवल इस आदमी से, This 30-year-old man. इस 30 साल के आदमी से। Stand up, खड़े हो जा, son of man. मनुष्य के पुत्र, This whole vision is for you. ये संपूर्ण दर्शन तेरे लिए है, Because now I'm getting ready क्योंकि अब मैं तैयार हो रहा to हूँ enter you. तेरे अंदर घुसने के लिए। Stand up. खड़े हो जा। I want to show you the scripture. मैं आपको वचन दिखाना चाहूंगा। Chapter 2. दूसरा अध्याय। After seeing that vision, इस दर्शन को देखने के he बाद fell upon his face वो अपने मुंह के बल गिर गया and he heard a voice. और उसने एक आवाज को सुना। Chapter 2 verse 1. दूसरा अध्याय पहली आयत। And he said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee. उसने मुझसे कहा, है मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। And the Spirit entered into me when he spake unto me and set me upon my feet. मैं अपने आप नहीं खड़ा हुआ, आत्मा ने मुझे खड़ा कर दिया। Amen। That I heard him that spake unto me. जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। It was not just a voice. ये केवल एक आवाज नहीं थी, It ministered the Spirit of God in him. वो खुदा की आत्मा को उसके अंदर लेके आ गया। And when that Spirit came in him, और जब वो आत्मा उसके अंदर आ गई, he stood up. वो खड़ा हो गया, He received strength. उसने ताकत पाई। By the way, let me tell you something. खैर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। What does the word Ezekiel mean? एजिकेल शब्द का मतलब क्या है? The Lord will strengthen me. खुदावंद मुझे बल देंगे। Strength will rise as we wait. बल बढ़ेगा जब हम इंतजार करेंगे। Oh, church, try to understand it. एक कलीसिया इसको समझने की कोशिश करें। I'm now jumping further. मैं आगे बढ़ रहा हूं। Verse 3. तीसरी आयत। And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that had rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me even unto this very day. उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरोध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरोध अपराध करते चले आए हैं। For they are impudent children and stiff-hearted. I do send thee unto them, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God. इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं वे निर्लज और हठीले हैं। यानी भेजने से पहले मैं जानता हूं ये बचेंगे नहीं। तू अब ऐसों के पास भेजा जा रहा है जो बचेंगे नहीं। सच है। फिर भी ऐसों के बीच में जा, और चाहे सुने या ना सुने, बोल दे, यहोवा यूं फरमाता है। Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. And they, whether they will hear or whether they will forbear, for they are a rebellious house, yet shall know that there hath been a prophet among them. और तू उनसे, Verse 5. और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। मैं भविष्यवक्ता हूं? आज पता लगा। मैं तो एक प्रीस्ट था, मेरे बाप का नाम बूजी है, मैं तो याजक हूं। बोले आज के बाद तू मेरा खाली याजक नहीं है, मैं तुझे अधिकार देता हूं आमीन, भविष्यवाणी करने का। बोल, यहोवा यूं फरमाता है, आई एम मेकिंग यू अ प्रॉफिट। मैं तुझे एक नबी बना रहा हूं। यू आर नॉट जस्ट अ प्रीस्ट, तू केवल याजक नहीं है, बट आई एम गिविंग यू अ प्रोफेसी। लेकिन मैं तुझे नबूवत दे मैं रहा हूं। आपके सामने कुछ रखने की कोशिश कर रहा हूं, आमीन। अगर आप समझ पाए। आई एम स्पीकिंग ऑफ सम पीपल टुडे। मैं कुछ लोगों के विषय में बोल रहा हूं आज। I'll jump to verse 9. 9वीं आयत में आता हूं। After that whole vision, इस संपूर्ण दर्शन के बाद first he saw the light, पहले उसने रोशनी देखी, he saw the rainbow, उसने मेघधनुष देखा, he saw the throne. सिंहासन देखा। All is happening on July the 5th. ये सब कुछ हो रहा है जुलाई 5 को। My, मैं I'm so taken by that. इससे इतना ज्यादा मैं
मैं पकड़ लिया गया हूं। What's happening next? अगली चीज क्या Verse होती है? 9. 9वीं आयत। And when I looked, behold, an hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein. आमेन। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें से एक पुस्तक है। Now you can connect it somewhere. क्या आप इसको कहीं जोड़ सकते हैं? Verse 10. 10वीं आयत। It's not a closed book. अब ये बंद किताब नहीं है। I'm reading verse 10. 10वीं आयत पढ़ रहा हूं। And he spread it before me, and it was written within and without, and there was written therein lamentations and mourning and woe. उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, भीतर और बाहर, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। Which part is Ezekiel seeing? एजिकेल कौन सा हिस्सा देख रहा है? Woes, हाय, lamentations, विलाप, plagues, विपत्तियां, vials. कटोरे। आमीन। He's getting ready for the vials. वो तैयार हो रहा है कटोरों के लिए। He's getting ready for the woes. वो हायों के लिए तैयार हो रहा है। Oh church, try to understand it. कलीसिया इस बात को समझने की कोशिश करें। And with the vials and the woes, he will prophesy to a rebellious people living in captivity. और इन हायों के साथ और विलापों के साथ, इन कटोरों के साथ वो नबूवत करेगा एक बागी लोगों के सामने जो कि बंधुआई में रह रहे हैं, Who will never get converted. जो कभी बदलेंगे नहीं, But he's giving a witness. लेकिन वो उनके सामने एक गवाही दे रहा है। Are you listening, brother? क्या सुन रहे मेरे भाई? आमीन। Chapter 3. तीसरा अध्याय। Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll, and he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it, it was in my mouth as honey for sweetness. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं इसे पचा ले और अपनी हथेलियों से इसे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और वो मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। Are you listening, brother? क्या सुन रहे मेरे भाई? Have you read the same thing in Revelation 10? क्या आपने यही बात को पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में? Ezekiel saw the beasts. एजिकेल ने जानदार देखे। Ezekiel saw the throne. एजिकेल ने सिंहासन देखा। Ezekiel saw the open book. एजिकेल ने खुली किताब देखी। Then he was told to eat the book. तब उससे कहा गया किताब को खा ले। John saw the throne. यूहन्ना ने सिंहासन देखा। John saw that fire. यूहन्ना ने उस आग को देखा। John saw that 4 beasts. यूहन्ना ने 4 जानदार देखे। He saw it more elaborately. उसने और बड़े रूप में देखा। He saw the opening of the book. उसने किताब के खोले जाने को देखा। Then the book was brought down. तब किताब नीचे लाई गई And he was told to eat the book. और उससे कहा गया किताब को खा ले। And what was he said? और उससे कहा क्या कहा Thou गया? must prophesy again. अब तुझे दोबारा नबूवत करनी होगी। Prophesy again what? दोबारा क्या नबूवत करनी होगी? Not a message of grace. अनुग्रह का संदेश नहीं। अब That was the first prophecy. वो तो पहली नबूवत थी। But which message? लेकिन कौन सा संदेश? Lamentations, विलाप, woes, हाय, judgments. न्याय। आमीन, आमीन। It's another time. ये फर्क समय है। Then आमीन। what's the book of Ezekiel showing? तो एजिकेल की किताब क्या दिखा रही है? What's July 5th doing? जुलाई 5 क्या कर रही है? It's unfolding another ride. ये एक और सवारी को खोल रहा है। It's a vision of another ride. ये दर्शन है एक और सवारी का। And I'm seeing that in Ezekiel. और मैं इसको एजिकेल में देख रहा हूँ। His 7th seal vision, उसकी 7वीं मोहर का दर्शन, which he saw in that cloud, जिसे उसने बादल में देखा, which he saw in that son of man. जो मनुष्य के पुत्र में देखा उसने। The son of man. वो मनुष्य का, मुख्य मनुष्य का वो पुत्र. मुख्य मनुष्य का पुत्र, In a son of man. एक मनुष्य के पुत्र में Prophesying. नबूवत करते हुए। If you're catching the message. अगर आप संदेश पकड़ रहे हैं, Oh church, catch it. What happened? ओ कलीसिया पकड़िए, क्या हुआ? What happened on that July 5th? वो जुलाई 5 को क्या हुआ? That masterpiece went in a man. वो सर्वोच्च रचना एक मनुष्य में चला गया। And what did he say? उसने क्या कहा? Speak. बोल। God bless you.
Oh church, catch that vision. ओ कलीसिया दर्शन को पकड़े, This is another time. ये फर्क समय है। Lamentations, विलाप, woes. हाय, It's time for judgment. ये समय है न्यायों का, Not a message of grace. अनुग्रह का संदेश नहीं अब। But now the door is closing. अब द्वार बंद हो रहा है। Are you understanding? क्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? Those who had to be saved are saved. जिन्हें बचना था बच गए। Now what's happening? अब क्या हो रहा है? The doors are closing. द्वार बंद हो रहे The हैं, squeeze is coming. दबाव आ रहा And है, when the time comes, और जब वो समय आता and when है, the third pull comes, और जब तीसरा खिंचाव आता it's है, a short, quick message. एक छोटा शीघ्र का It's संदेश है। another time. ये एक फर्क समय है। What did Brother Branham भाई say? ब्रैनम ने क्या कहा? For Olin Walker's dream. ओलन वैकुर भाई के ख्वाब के लिए, When you understand the vials, जब आप कटोरों को the समझे, trumpets, तोरइयों को and the thunders, और गर्जनों को, then you will understand तब आपको समझ में आएगा what these people have dreamt. इन लोगों ने क्या ख्वाब में देखा। That ride had to do with vials. इस सवारी का संबंध था कटोरों से, It had to do with the judgments. उसका संबंध था न्यायों से। I think you're understanding मैं it. सोचता हूँ समझ रहे And होंगे, that's the time we are in now. और ये वो समय जिसमें हम रहते हैं. यस, Because there's a church. क्योंकि एक कलीसिया है, There's a Ezekiel church एक एजिकेल वाली कलीसिया है, by which जिसके द्वारा he'll shake the nations. राष्ट्र को हिला देगा। What is going to happen? क्या होगा? क्या होगा? He'll come वो आएंगे and become some people literally. और वास्तविकता में कुछ लोग बन जाएंगे, Enter that man उस आदमी में घुसेंगे and tell him stand up. और उसे कहेंगे उठ। What will that man experience? वो आदमी क्या अनुभव करेगा? Super anointing. सर्वोच्च अभिषेक। Stand up. खड़े हो जा। What do you want? तुझे क्या चाहिए? Speak it. बोल दे इसे, It shall be. वैसा ही हो जाएगा। I'm giving you an authority. मैं तुम्हें एक अधिकार दे रहा हूँ। You are a king and a priest. तू एक राजा याजक है, But I'm giving you the spirit of prophecy. लेकिन मैं भविष्यवाणी की नबूवत की, Same Ezekiel. वही इज़िकेल, He sees the ceiling वो मोहरबंदी देख रहा है in chapter 9. 9वें अध्याय में। Same Ezekiel वही इज़िकेल prophesies against nations. राष्ट्रों के विरोध में नबूवत करता है, But in the end of the book, लेकिन किताब के खात्मे when पर you come to chapter 37, जब आप 37वें अध्याय में आते हैं, same Ezekiel वही इज़िकेल becomes a voice. वो बन जाता है आवाज, A voice of resurrection. पुनरुत्थान की आवाज। Speak, बोल दे and these bones will get up. और ये हड्डियां उठ जाएंगी। Speak, बोल and the winds would come. और Hawaii will हवाएं आ जाएंगी and stand a mighty marching army. और एक महान सेना खड़ी हो जाएगी। After he spoke that, इसको बोलने के बाद in chapter 38, 38वें अध्याय में he starts shouting, वो चिल्लाने लगा, Gog, गोग, Magog, मागोग, Meshach, मेशेक, Tubal. थूबाल। Amen. It's happening, my brother. All the way from the pillar of fire to that man, to the open book, to the speaking of the word, to the prophecy to Gog. Amen. कहां से चालू हुआ? आसमान के खुलने से, उस रोशनी के आने से। कैसे वो आदमी बना, कैसे वो आदमी आगे बढ़ करके वो विलापों को बोल रहा है, न्यायों को बोल रहा है, और उसके बाद आप पाएंगे कि वो तब्दील हो गया और बोलने लगा, गोग, मागोग, मेशेक, तुबल। That July 5th vision got tied to the nations and the resurrection of a people. वो जुलाई 5 जुड़ गया एक दर्शन के साथ। Joined up with? That vision joined up with the prophecy to the nations वो दर्शन जुड़ गया नबूवत को कुछ राष्ट्रों के लिए and the resurrection of a people और कुछ लोगों के पुनरुत्थान के साथ, who thought their hopes are lost. जिन्होंने सोचा कि उनकी आशाएं खत्म हो गई। They got another revival. उनको एक और बेदारी मिल गई, They got a filling. उनको एक भरा जाना मिल गया, The wind started flowing. हवा बहने लगी। And how did they stand up? और वो कैसे खड़े हुए? Not as a church, कलीसिया के रूप में but as नहीं, an army. लेकिन एक सेना के The रूप में। church had become an army. कलीसिया सेना बन चुकी। Can you catch the message? क्या संदेश पकड़ पा रहे हैं Because आप? now the voice, अब आवाज, that prophecy वो नबूवत was in a man, एक आदमी में थी, in a church. एक कलीसिया में थी। Chapter 38, 38वां अध्याय, chapter 39. 39वां अध्याय। Gog, Magog. गोग मागोग, Because immediately after Gog, Magog क्योंकि तुरंत गोग मागोग के बाद comes chapter 40. 40वां अध्याय आता है। And what he sees, chapter 40, और 40 अध्याय में क्या देखता है वो? the tabernacle being erected. वो देख रहा है कैसे मंदिर तामीर हो रहा है। Oh, church. हालेलुया, कलीसिया। And what did he see next? और अगली चीज क्या देखता The है? prince from the eastern gate entering his temple. वो प्रधान उस पूर्वी फाटक से
अपने भवन में प्रवेश करता The है, anointing of the most holy. परम पवित्र का अभिषेक। If you can catch the message. अगर आप संदेश को पकड़ पाए, What's the last line in Ezekiel? अंतिम पंक्ति क्या है? It एजेकिएल, shall be said for that place, उस जगह के लिए कहा जाएगा, Jehovah Shammah, यहोवा शम्मा, the Lord is there. प्रभु वहां पर है। How does Ezekiel close? एजेकिएल बंद कैसे हुआ? God in his people, खुदा अपने लोगों के अंदर, Shammah in his bride. शम्मा अपनी दुल्हन में। What happens next? अगली चीज क्या होती है? Raptured. रैप्चर। The wheels go up. पहिए ऊपर चले जाते हैं। Sorry, माफ कीजिएगा, I took a lot of your time, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, but I'm leaving some things for you. लेकिन मैं आपके लिए कुछ बातें छोड़ रहा हूं। What happened? क्या हुआ? July, जुलाई, conception गर्भधारण and the resurrection of a seed. और एक बीज का जगाए जाना। Jairah, जायरे, based on resurrection of a seed. जो कि आधारित है एक बीज के जगाए जाने के साथ। And here Ezekiel और यहाँ पर इज़िकेल being quickened जगाया गया to quicken others ताकि दूसरों को जगा सके and bring out them from their graves. और उनको कब्रों से बाहर निकाल सके। It's connected to a resurrection. ये पुनरुत्थान के साथ जुड़ा है। If you can see that, brother. अगर आप इसको देख पाए मेरे भाई, And Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, he took Christ the diamond उसने मसीह जो हीरा है उसको लिया and he went to Kimberley in Africa. और किम्बरली अफ्रीका में वो गए, And when the diamond was chipped, और जब जो हीरा है ये तराशा गया so that the light can sparkle in it, ताकि रोशनी उसमें से चमक सके। the seven spirits of Christ, मसीह की सातों आत्माएं, the chips which were taken out, वो टुकड़े जो उसमें से निकले थे, which represents the bride, जो कि दुल्हन को दर्शाते हैं, bride taken out of him. दुल्हन उसमें से निकाली गई। He said, what do they make out of it? उन्होंने कहा इन छोटे छोटे टुकड़ों से वो क्या बनाते हैं? Victrola needles. विक्ट्रोला की नीडल। And what is that needle, brother? और वो विक्ट्रोला की नीडल क्या है? Now we don't have gramophones, अब हमारे पास वो ग्रामोफोन तो नहीं है, but Victrola needle had a work. लेकिन विक्ट्रोला नीडल जो थी उसका एक काम होता था। That unheard voice in that recorder, वो उस रिकॉर्डर में पाई जाने वाली अनसुनी आवाज, it made it heard. उसने उसको सुना दिया। And that's the ministry today. और यही सेवकाई आज है। Some Victrola needles. कुछ विक्ट्रोला की नीडल, There are voices of God here यहाँ पर खुदा की आवाजें हैं which nobody can hear. जो कोई और नहीं सुन सकता। But when it strikes a Victrola needle, लेकिन जब वो एक विक्ट्रोला नीडल को छूता है, people can hear that unheard voice. लोग बाग उस अनसुनी आवाज को सुन सकते Now हैं। in that Victrola needle is that voice. अब उस विक्ट्रोला की नीडल में वो आवाज है। Can you catch the message? क्या संदेश आप पकड़ पा रहे हैं? July the 5th, जुलाई 5 connected to a rapture. जुड़ा हुआ है एक रैप्चर के साथ। Amen. Oh my. Oh my. It's so astounding ये इतनी हैरत अंगेज बात है। how we are here on this day, कैसे हम आज के दिन यहाँ पर मौजूद हैं, celebrating the same testimony in the life of Brother Abner and Sister Rimjim. उसी गवाही को मनाते हुए जो कि भाई एबनर और बहन रिमझिम के जीवन में हुई, In that baby. उस बच्चे में। And that happened with Abraham. और ये इब्राहिम के साथ हुआ, That happened with Elizabeth. ये एलिशबा के साथ हुआ, And now that resurrection will happen here और वो पुनरुत्थान अब यहाँ पर होगा in a big way, एक बड़े रूप में, because there's a voice of prophecy क्योंकि एक नबूवत की आवाज है in a masterpiece bride एक सर्वोच्च रचना वाली दुल्हन में, who has caught the vision, जिसने दर्शन को पकड़ लिया है, who saw that fire, who saw that cloud, who saw that rainbow. But it's not just stopping at cloud, rainbow, no. It becomes a throne in a man. और उसने उसको देखा आग में, बादल में, खंबे में, और वो केवल वहीं पर सीमित नहीं रह गया, लेकिन वो सिंहासन उसके अंदर आ गया। When it gets in that man, जब उस आदमी के अंदर आता है, then he says, stand up. तब उससे कहा जाता है खड़े हो जा। What was John told? यूहन्ना से क्या कहा गया? Stand up. खड़े हो जा। What was Brother Branham told in the woods? भाई ब्रैनम से जंगल में क्या कहा गया? Stand up. What do you want? खड़े हो जा, तुझे क्या चाहिए? And he felt that super anointing. और उसने उस सर्वोच्च अभिषेक को महसूस किया। These are the hours ये वो घड़ियां हैं of super anointings सर्वोच्च अभिषेक की, which will strike some people. जो कुछ लोगों को छुएंगी। If you call it prophecy, you can. अगर आप इसे नबूवत कह सकते हैं, कहना चाहते हैं But तो it is a कहिए। fact. लेकिन ये बात सत्य है। It's a time ये समय है for some people कुछ लोगों के to लिए receive that super anointing. ताकि उस सर्वोच्च अभिषेक को प्राप्त करें। How many will have it? I don't know. कितनों के पास होगा मुझे नहीं मालूम, But if there's a bride, it will. लेकिन अगर दुल्हन है तो उसके पास होगा। And when that super anointing strikes, और जब वो सर्वोच्च अभिषेक आएगा it'll bring that her to a place. और वो उसको उस स्थान पे पहुंचा देगा, She becomes his voice. वो उसकी आवाज बन जाएगी। And then the voice of resurrection. और फिर पुनरुत्थान की आवाज। And the next thing, और अगली चीज, the Lord is there. प्रभु वहां पर है। The temple in the people. मंदिर लोगों के अंदर, Jehovah Shammah. यहोवा शम्मा।
I think you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। Because immediately when Ezekiel closes, तुरंत जब एजिकेल बंद होता है, starts Daniel. डैनियल की किताब चालू हो जाती है। I think you will understand it. मैं सोचता हूँ कि समझ रहे होंगे आप। God really bless you. खुदा ना आपको बहुत आज से बरकत दे। Think on these things इन बातों के विषय में सोचिएगा and meditate on these. और इन चीजों पे मनन करिएगा। So I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, I am these days living in a vision. मैं इन दिनों में दर्शनों में रह रहा हूँ। दर्शनों में नहीं बोला ब्रदर, मैंने कहा मैं एक दर्शन में जी रहा हूँ। एक दर्शन में मैं जी रहा हूँ। And I want my people, और मैं चाहता हूँ मेरे लोग, sons of the prophets, नबी के पुत्र, daughters of the prophets, नबियों की बेटियां, O Zion, O Jerusalem. हे सैयोन, हे यरूशलेम। I'm speaking to some elect. मैं कुछ चुनावों से बातचीत कर रहा You हूँ। are the chosen people. तुम चुने हुए लोग हो। Many of you आप में से बहुतेरे chosen to be His voice. चुने गए उसकी आवाज बनने के लिए। And this July the 5th, और इस जुलाई 5 को you have a message. आपके पास एक संदेश You है। have been made kings and priests, आपको राजा याजक बनाया गया है, but you've given a book to eat. लेकिन आपको किताब दी गई है खाने के लिए। And now you're told, और आपसे कहा गया है prophesy. नबूवत करिए। Everybody cannot, हर एक कोई नहीं कर सकता, but God visits some. लेकिन खुदावंद आके कुछ की सुधि लेते हैं And they become a part of a vision. और वो एक दर्शन का हिस्सा बन जाते हैं। I'm living in a vision tonight. आज रात्रि में एक दर्शन में रह रहा हूँ। If I can see Sodom in the world, अगर मैं सदोम पृथ्वी पर देख सकता हूँ, if I can see that man of sin rising, अगर मैं देख सकता हूँ उस पाप के पुरुष को उठते हुए पृथ्वी पे। you see what's happening in America. आप जानते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है? The ground is built भूमि तैयार है for the man of sin. पाप के पुरुष के लिए। The king of the north is rising up. उत्तर का राजा उठ रहा है। All the prophecies are being fulfilled. तमाम नबूवतें पूरी हो रही हैं। Middle East is in the center now. मिडिल ईस्ट अब आप पाते हैं कि वो केंद्र में आ चुका है। Israel is in the center of the whole nations. और इजराइल सब राष्ट्रों के केंद्र में आ चुका है। All that we heard is now being seen by our eyes. जो कुछ हमने सुना था अपनी आंखों से देख सकते हैं, But at the same time, लेकिन उसी के साथ a साथ rock cut without hands has come. एक पत्थर बिना हाथों के खुदा आ चुका है। And it's time. और अब समय है, There are some people in this land इस भूमि में कुछ लोग हैं who live in a vision, जो एक दर्शन में रह रहे हैं, who have caught a vision. जिन्होंने दर्शन पकड़ा है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जिन्होंने दर्शन पकड़ा। आमेन। And बाइबल में लिखा, याद रखना, थोड़ा मैं डांट के भी जा रहा हूं, जिनके पास दर्शन नहीं वो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल सच बाइबल में है। लिखा है। यस। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां पर भी मैंने देखा हैं लोग जिनके पास दर्शन है। आमीन। इसलिए मैं बोल के जा रहा हूं ये बात आपके बीच में। आई एम टॉकिंग टू दोज हु हैव अ विजन। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं जिनके पास दर्शन है। जिनके पास दर्शन नहीं वो बर्बाद हैं। सच है, उनका कुछ होने का नहीं। बट देयर इज अ विजन लेकिन एक दर्शन है एंड यू फाइंड इट इन द मैसेज। और आप पाएंगे इसको अब ये संदेश। दर्शन ऐसे ही बैठे नहीं मिलता, ये दर्शन मिलता है संदेश में से। आमीन। देन यू अंडरस्टैंड द विजन। तब आप समझेंगे दर्शन को, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, एजेकियल्स विजन। एजिकेल का दर्शन। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड और अब आप समझेंगे हाउ एजेकियल एंड जायरा गॉट रिलेटेड। कैसे एजिकेल और जायरा जुड़ गए। रैप्चर, रैप्चर, a rapturing faith. एक रैप्चर वाला विश्वास। If you can understand it. अगर आप इसे समझ पाए। Ezekiel's wife died, एजिकेल की पत्नी मर गई, but this bride will not die. लेकिन ये दुल्हन नहीं मरेगी, She's going in a rapture. वो एक रैप्चर में जा रही है। If you can catch the message. अगर आप संदेश पकड़ पाए। That was a sign there, वहां तो वो चिन्ह था, but today it's another sign. लेकिन आज एक और चिन्ह है। This bride, ये दुल्हन she's not going to वो die. नहीं मरेगी। आप चाहो आपकी विश्वास कर लो, या आप चाहो तो उसे छोड़ दो, आपकी बात है। मैंने कब कहा आपको विश्वास करने के लिए, लेकिन मेरे अब जहां तक सवाल है, मैं विश्वास करता हूं। आमेन ब्रदर, सेम हियर। वो सुन रहे हैं और मैं उन्हें भी सुना रहा हूं, सबके बीच में खुलेआम। मैं मानता हूं, आप मानो ना मानो ब्रदर, ये आपकी बात है। सिस्टर मानो ना मानो, आपकी बात है। मैं मानता हूं आमीन। दिस ब्राइड, ये दुल्हन, मेरे पास कहने के लिए अभी बहुत कुछ है। टाइम हो गया मीटिंग खात्मे का, मैं इसको बंद कर रहा हूं। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर नॉट जस्ट हियर फॉर सम सेरेमनीज, यहां पर हम किसी केवल सेरेमनीज के लिए नहीं है। एंड वी आर नॉट जस्ट हियर फॉर सम सेलिब्रेशन, दैट्स इट एंड फिनिश्ड। कुछ चीजों को मनाना और ये करा और खत्म कर दिया बस। बट आई सी पीपल फ्रॉम सराउंडिंग प्लेसेस। लेकिन मैं लोगों को देखता हूं आसपास के क्षेत्रों से। आई कैन सी ब्राइड, मैं दुल्हन को देख सकता हूं। आई कैन सी पीपल मैं लोगों को देख सकता हूं who are part of a vision, जो कि दर्शन का हिस्सा है।
कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपना दर्शन खो बैठते हैं, और जब खो बैठते हैं तो खुदावन फिर एक काम करते हैं कि उन्हें वापस दर्शन में लाते हैं। होता है ऐसा, हो जाता है ऐसा कभी कभी। बट आई वॉन्ट टू से दिस, मैं कहना चाहता हूं, गॉड हैज अ विजन खुदा के पास एक दर्शन है फॉर यू एंड फॉर मी। आपके और मेरे लिए। देयर आर प्रोफेसीज, नबूवतें हैं, आई एम लिविंग बाय दैट, और मैं उसके द्वारा जीवित हूं। माय क्राइस्ट लिव बाय दैट, मेरे मसीह उसके द्वारा जिए, एंड द वर्क्स दैट ही डिड और जो काम उन्होंने किए शैल वी डू आल्सो। हम भी करेंगे, एंड वी आर डूइंग इट, और हम उसको कर रहे वी हैव हैं। डन मेनी वर्क्स, हमने बहुत से कार्य किए, बट देयर आर सम ग्रेटर वर्क्स। लेकिन कुछ महान कार्य हैं। आमेन। हाउ टू क्लोज दिस मीटिंग, इस मीटिंग को कैसे बंद किया है, बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करना है, which God has kept for you and me. जो खुदा ने आपके और मेरे लिए रखा है। When you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, tell him, उनसे कहें, give me your vision, मुझे दर्शन दें प्रभु, what you have for me. जो मेरे लिए आपने रखा है। Show me the further part. मुझे आगे के हिस्से को दिखाएं। इतना हिस्सा तो आपने मुझे दिखा दिया, अब आगे का दिखाएं। आमीन। कुछ आगे भी है जो खुदा ने हमारे लिए रखा। आमीन। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। हमने काम किया है रूहों को बचाने का, प्रचार का, दुआ करने का, ताकि रोगी चंगे हों। हम ही एक और काम भी करेंगे, आमीन, जिसके विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था आज। भाई समझ में आई? गॉड ब्लेस यू। नहीं समझ में आई, घर जाइए, रिकॉर्ड हो चुका होगा, सुन लीजिएगा फिर से कि हिजकेल की कमीशनिंग किस लिए हुई। हाँ जी, हिजकेल की कमीशनिंग किस लिए हुई, पढ़ के बताइए। पढ़ लीजिएगा पूरा अध्याय। मैं तेरे माथे को चकमक जैसा बनाता हूं, तू इनके चेहरों को मत देखना। पढ़िए, बाइबल लिखा है। यस यस। ये कैसे तेरी मीटिंग में बैठ के चेहरा बनाते हैं। आप आज जाइए डिनोमिनेशंस में, इस वचन को लेके वहां पे ऐसे करते हैं लोग, कभी यूं कभी यूं, एक दूसरे से कह रहा है, ऐसे चेहरे बनाते हैं। हिजकेल से कह रहा है इनके चेहरे मत देखना, इनके चेहरे को देख के प्रीचिंग मत करना। एक थोड़ा बोल्ड हो गया, करने लगा, मतलब घड़ी देखो, समझ मारी है आपके। उसने कहा तू मत देखना इनकी बात, तुझे जो मैं वचन बोलूं तू उसे जाके बोलना। आमीन। समझ मारी है आपके। आमीन। बोले परवाह मत कर, परवाह मत कर, क्योंकि अब समय दूसरा है। अब समय लेमेंटेशंस, विलाप गीत, हायों का, न्यायों का आमीन आ रहा है, जिसमें अब मैं और आप रह रहे हैं। वही जिन्होंने रहम प्रचार किया, ओ यस, अब मजबूरन न्याय प्रचार, न्याय का प्रचार करेंगे। मजबूर हैं, क्योंकि एक आत्मा है जो उन्हें खड़ा करवाएगा। बोल, वो नहीं बोलना चाहता, बोल, मैंने कहा बोल, और वही आत्मा कहेगा इन हड्डियों से भी बोल कि ये खड़ी हो जाए। आमीन आमीन। ओ चर्च, ओ कलीसिया, कैच दैट विजन। इस दर्शन को पकड़े। यू आर अ पार्ट ऑफ अ विजन। आप एक दर्शन का हिस्सा है। क्या था वो गाना? दीज आर द डेज ऑफ एजेकियल। आमीन आमीन। आप ट्रांसलेट करिए। ये दिन एजिकेल के हैं। That was the song. ये था वो गीत। And these are the days of Ezekiel. Yes, amen. और ये एजिकेल के दिन है। आमीन। July the 5th. जुलाई 5। We are celebrating Ezekiel and Jireh. हम मना रहे हैं एजिकेल और जायरे को। Why? क्यों? The wheels are getting ready to move up. पहिए, चक्रियां तैयार हो रही ऊपर बढ़ने के लिए। Rapturing time. रैप्चर वाला समय। Oh children. ओ बच्चों, Oh daughters and sons of Jerusalem. यरूशलेम के बेटे और बेटियों, Filled with the Holy Spirit. आत्मा से भर जाओ। Fill that anointing. उस अभिषेक से भर जाएं। Be filled up. भर जाएं। Be stout. Be filled. भर जाएं। Live. जियो। Live in the presence of God. खुदा की उपस्थिति में रहो। Be filled. भर जाओ। May you receive that mind. काश तुम्हें वो मस्तिष्क मिल जाए, The mind of Christ. मसीह का मन। May you rise काश आप उठे and stand और खड़े हों and speak. और बोले। Is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है। Rejoice. आनंदित हो, Rejoice in the Lord. प्रभु में आनंदित हो। Be filled.
भर जाएं and praise your God. और अपने खुदा की उपासना करें। Great is the Lord महान खुदा है and greatly to be praised. और महान और इबादत की योग्य है। जब तोड़ने पे वो आएगा, वो समय देखने वाला होगा। जब पासे पलटेंगे, हाँ जी, वो समय होगा देखने का। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, there'll be some people कुछ लोग होंगे who will be with him जो उसके साथ होंगे on those white horses. उन सफेद घोड़ों पे। Praise God. Can I see those people? क्या मैं उन लोगों को देख सकता हूँ? God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Amen. Let's all, yes, you all are standing. हम सब खड़े हैं, Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, we thank you for this day, July the 5th. इस दिन जुलाई 5 के लिए आपका बड़ा धन्यवाद करते We हैं। thank you for that broken piece from the masterpiece. हम आपका धन्यवाद करते हैं उस टूटे हुए हिस्से के लिए जो कि उस सर्वोच्च रचना से निकला, Your bride. आपकी दुल्हन। And now you made a masterpiece out of her. और अब आपने उसमें से एक सर्वोच्च रचना बना दी And you are telling, speak, और आप कह रहे हैं बोल, stand up, खड़े हो जा, stand up and speak. खड़े हो के बोल। We feel that anointing, Lord. हम उस अभिषेक को महसूस कर पाते हैं प्रभु। The son can do nothing पुत्र कुछ नहीं कर सकता till the father shows him first. जब तक कि पिता पहले उसे दिखा ना दे। If you can't believe me, अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते, believe the works. कामों पे विश्वास करो। Search the scriptures. वचन में, पवित्र शास्त्र में खोजो, ढूंढो, For they are they that testify of me. क्योंकि ये वो बातें जो मेरी गवाही देती हैं। And then finally you said, और आखिरकार आपने कहा, the works that I do जो काम मैं करता हूँ shall you do also. वो तुम भी करोगे। So I'll be with you, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, even in you. वरन तुम्हारे अंदर होऊंगा। We've experienced Christ in us in a measure. हमने मसीह को अपने अंदर एक माप में अनुभव किया, But this is the time. लेकिन अब ये वो समय है, It'll not be in a measure. ये अब एक माप में नहीं होगा, It'll come in its fullness. वो अपनी परिपूर्णता में आएगा। The super anointing सर्वोच्च अभिषेक to wake us up. ताकि हमें जगा दे। Stand up. उठ जा। The 3 rainbows 3 मेघधनुष in that candlestick. उस क्षमादान में, Godhead खुदायत्व in this church. अपनी कलीसिया में। Rise. उठ, Stand. खड़े हो, Speak. बोल। Yes, we have spoken some things. हाँ प्रभु, हमने कुछ बातें कही हैं, But it's time to speak some new things. लेकिन अब समय आ गया कुछ नई बातें बोलने का। New things do I declare. नई बातों का मैं ऐलान करता हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Oh God, ए खुदाबंद, I know you're here tonight. मैं जानता हूँ आज रात्रि आप यहाँ हैं। May thy sweet Holy Spirit काश आपका मधुर पवित्र आत्मा strike somebody किसी को छुए and raise them up. और उनको उठा दे। We are not just hearers, Lord, हम केवल सुनने वाले ही नहीं है खुदा, but we want to live in this vision. लेकिन इस दर्शन के साथ जीना चाहते हैं। This bride will not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी, She's going in वो the जा रही rapture. है एक रैप्चर में। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Oh God, give us grace. खुदा हमें अनुग्रह प्रदान करे Catch this July 5th vision. ताकि इस जुलाई 5 के दर्शन को पकड़ सके। It's for a bride. ये एक दुल्हन के लिए है, It was for Ezekiel. ये एजेकिएल के लिए था, It's for a bride. एक दुल्हन के लिए है And we can see it. और हम इसे देख सकते हैं। Bless this child, इस बच्चे को बड़ी बरकत दे। Ezekiel Jireh. एजेकिएल चायरे को Fill him with thy spirit, Lord. अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। Protect him from all wrongs. हर एक गलत से आप इसको सुरक्षित रखें। Let him prosper physically and spiritually. भौतिक रूप से और आत्मिक रूप से खुदावंद ये खुशहाल हो खुदावंद। Bless Brother Abner भाई अब्नर को बड़ी बरकत दे and Sister Rimjin और बहन रिमझिम को for this day. इस दिन के लिए। Bless Pastor Indal. पास्टर इंदल को बड़ी बरकत दे, Bless Brother Rajiv Das भाई राजीव दास को बड़ी बरकत दे and all the pastors और तमाम पास्टर्स को, and their churches and people who have come here. उनकी कलीसियाओं को और लोग बाग जो यहाँ आए हैं। Lord, we can feel that quickening power प्रभु हम महसूस करते हैं, कर सकते हो जला उठाने वाली सामर्थ को working amongst us, हमारे बीच में काम करते हुए, calling us from all kinds of nonsense and scrap to that vision which you have for us in this hour. हमें तमाम बकवास से बाहर बुलाते हुए ताकि हम उस दर्शन में आ जाए जो आपका हमारे लिए है प्रभु इस घड़ी में। Bless everybody. हर एक को बड़ी बरकत दे। We pray for the bride आपकी दुल्हन के लिए प्रार्थना करते हैं, in all the nations. तमाम राष्ट्रों में Bless them. उन्हें बरकत दे। Bless every saint हर एक संत को बड़ी बरकत दे who's striving for the cause. जो कि इस कारण और मकसद के लिए प्रभु युद्ध में और लड़ाई में है।
And then Lord be with us. और प्रभु फिर हमारे साथ हों, Even the future program of eating, और यहाँ तक कि आगे प्रभु जो खाने की का जो प्रोग्राम है, you bless us. हमें बरकत दे। And then Lord, when we depart to our homes, be with us और जब हम यहाँ से जाएं प्रभु, जुदा होकर अपने घरों की ओर, with this vision इस दर्शन के साथ, and never get out of it. और उससे कभी बाहर ना निकलें। Let I and the vision become one. मैं और वो दर्शन वो ताकि एक हो जाएं। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। I'll call Pastor Indal. पास्टर इंदल भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाथों को उठाकर बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की।